ठरवलं तर रिसर्च बऱ्यापैकी मागे सारल्या जाईल. आणि जर एकदा रिसर्च करायचं ठरवलं तर पीएचडी काय पेटेंटही होतील, 7-8 पेपर्सही होणार, सगळंच होणार. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मेरे को करना क्या है? और वी एज अ टीचर becoming a part of certain file making committee, please excuse me for the words, but you, instead of becoming a committee member, a criteria in charge for developing file, a file development workshop, मला एकाने म्हटलं सर एफडीपी मध्ये याल का? म्हटलं काय ते? म्हणजे फाईल डेव्हलपमेंट, नॅकचं फाईल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम तुम्हीच घ्या सर, तुम्ही सांगाल तशा फाईल बनवू. म्हटलं अरे सर फाइल बनाना नैक नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड. नैक फाइल्स देखती है, नाइक नैक प्रूफ देखती है, नैक आपका सब कुछ देखती है. लेकिन पॉइंट इज, yes, I'll start a chat, let us be interactive. I'll write hello, and you can also start writing in chat whatever you feel like. If you feel like expressing yourself, your opinion. Last time आपलं खूप भरपूर इंटरॅक्टिव्ह झालं होतं. I would love to have to see you all in this chat box, so that we can learn from each other. So that is the point. So achieving excellence, achieving quality, achieving name, fame, quality benchmarks into all areas, all sectors of an institution is what we call it as NAC, because it gives for institution. And if it is for branches like an engineering institution, then it is for particular program. अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर नैक में है, एनबीए में है, फॉर एनी एक्रेडिटेशन इन दिस वर्ल्ड है, तो इट इज ओबीई, outcome based education. It has to be outcome based assessment, outcome based enrollments, outcome based learning, outcome based teaching. Teaching should be outcome based, student centric. Teaching should be student centric, it should be outcome based. It has to be a focus that when student passed out, it has got its own value. It should have its own value. त्याला त्याची एक व्हॅल्यू असली पाहिजे. मार्केट में मेरे को 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, मेरे को 12 लाख का मिल रहा है, या मेरे को 22 लाख का मिल रहा है. दिस वैल्यू आइडेंटिफिकेशन कैन टेक प्लेस. जैसे नैक हमको 1000 में 800 मार्क दे रहा है क्या, 4 में 3.2 दे रहा है क्या, 2.2 दे रहा है क्या, 3.6 दे रहा है तो हम ए डबल प्लस हो सकते हैं नैक में. सेम वे देर इज अ ग्रेडेशन, बट instead focusing on grades, instead focusing on the rank, instead focusing only and exclusively on scoring, याच्यात 3.2.2 मध्ये 5 मार्क मिळाले पाहिजे, 2.1.1 मध्ये 1 मार्क मिळाला पाहिजे, वो करके हम कॉलेज में बदलाव नहीं ला सकते. सो पॉइंट आई वांट टू think, ponder upon, all senior faculty are here. So I just wish to make you understand that आउटकम बेस करायच्या एक सेट ऑफ रूल्स हमने खड़ा करना चाहिए. नॅक में मार्क अपने आप मिलेंगे. बहुत फेमस फिगर आहे. आपण इनपुट एक छोटंसं रोपटं लावतोय, त्याचं खूप मोठं सुंदर वृक्ष होतं, हिरवगार सावली मिळते, बट दॅट डझंट मीन इट इज आउटपुट. इट इज आउटपुट. You have sown the seeds, so you got a tree. You not only got a tree, you have a green cloud taken place out of those small sapling, small seeds you have sowed. But it is the purpose served? No, because it's a mango tree. We need to get mangoes, thousands and hundreds of mangoes out of it. खूप हिरवगार सुंदर आंब्याचं झाड आहे. ठीक आहे, सावली होईल. आपण पेरलं आणि आपल्याला काहीतरी मिळालं. इनपुट एंड आउटपुट. सैपलिंग लावला, एक छोटा पौधा हमने लगाया और उसका बहुत बड़ा झाड़ हो गया, पेड़ हो गया. इनपुट, आउटपुट, आउटकम. Outcomes are how many mangoes in every season, what is the quality of mango, what is the size of its, I mean, size, shape, color, quality, sweetness, ripeness, quality, time, number of mangoes, number of quality mangoes. This is where we understand as an outcome. काहीतरी जर आपण शिकवलं तर काहीतरी रिझल्ट लागणारच आहे, आणि तो रिझल्ट 90% पण असू शकतो. We are teaching something, and definitely there will be results. Depends, it can be 80%, it can be 90%, it can be 20%. आउटपुट तो है. हमने इनपुट दिया टीचिंग का, आउटपुट निकला लर्निंग का. पर वो लर्निंग आउटकम की क्वालिटी बेंचमार्क, वो आउटकम बेस है क्या, वो लर्निंग से उसको नौकरी मिल रही क्या, वो आई मीन दैट लर्निंग इज फेचिंग हिम अ जॉब, दैट लर्निंग वेदर इट इज फेचिंग हिम अ गुड सोसाइटल स्टेटस, उसको क्या मिल रहा है.
एक बड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद में वो हिस्सा बन जाएगा क्या? तर मग त्याला आउटपुट म्हणतात, त्याला आउटकम म्हणत नाही. अँड आय रिमेंबर वेन आय फर्स्ट टाइम लाईक मे बी सम 20 years बॅक आय वॉज वी आर अप्लाइंग फॉर नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रेडिटेशन. 4 ब्रांचसाठी आम्ही त्या काळात म्हणजे मला असं वाटतं 2000 येस 99 or 2000. It's almost 22-25 years back. I remember we were preparing for accreditation. We were even worried about 20 years back, I'm telling you, accreditationचं स्पेलिंग लोकांना येत नव्हतं. Accreditation का मीनिंग नहीं समझता था. NAC तो तब था ही नहीं. Engineering colleges were never used to go for NAC. So it was NBA and that too branch wise. The branch wise NBA करायचं आहे तो it's not easy. So point I want to put across is understanding the procedures, methods, processes, पर्पस, फोकस, ये सब पे हमको तवज्जो देनी पड़ेगी. वी नीड टू फोकस ऑन वी नीड टू फोकस ऑन quality. We need to focus on every single sector, every single stakeholder of my education system. May it be student, parent, industry, society, country, state, government, government organizations, non-government organization. Am I beneficial to them or not is the question. Am I beneficial to them? वो बेनिफिशियल अगर आप हो गए तो आपका नैक तो A++ हो गया. अगर आपकी सोसाइटी बोल रही, अगर आपकी एक एक मिनट में ये थोड़ा सा तो दिखाई देता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो बस यही फोकस है, राइट? 7 क्राइटेरिया, उसमें की इंडिकेटर्स है, मेजर की इंडिकेटर्स है. आई थिंक व्हाट 35-38 की इंडिकेटर्स है जिसपे हमको फोकस करना है. We have to focus on those key indicators wherein we wish to score the marks. Curriculum aspects. अब जब मैंने यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस रखा है, एफिलेटेड में थोड़े थोड़े नंबर कम रहते, टोटल सबका 1000 है, राइट? टोटल इज 1000. सो अब फोकस क्या करना है कि हमको सी यू हैव टू से टारगेट मॉडेस्ट टारगेट. अगर ए ग्रेड रखा है, आवर कॉलेज इज A+. नाउ ICC गॉट A++, रामदेव बाबा गॉट A+. So now A+ has become a, Nagpur mein, I guess there are more than 7-8 colleges who are A+. So if they are A+, then the target is we need to understand the quality. We need to understand the very assessment process. नागपुरासारख्या सिटीमध्ये जर 7-8 कॉलेजेस A+, आम्ही एकच होतो. आय रिमेंबर 3 years back when Priyadashini Group got Priyadashini College of Engineering got A+ grade. तो नागपुर में we were only A+. And then suddenly now there are 7-8 A+ colleges. That will still not ensure because हमने क्वालिटी इंश्योर किया. बट स्टिल हमको क्राइटेरिया वाइज देखो, NAC has helped me to enhance my quality very systematically, very meticulously, with micro planning, with small targets, with bigger targets, with small range goals and long range goals. तसं छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये ते 4-7 तुकडे त्यांनी केले आहे. They call it as criteria and they are marks. Criteria 1 talks about curriculum, design, academic flexibility, curriculum enrichment, feedback system. First criteria talks about around 150 marks affiliated and both. So 150 marks कशावर आहे? करिकुलम एनरिचमेंट, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी. देखो उसमें से मैंने कुछ वर्ड पकड़ लिए. करिकुलम, अरे वाह, ये तो सोपा है क्योंकि हमारा करिकुलम नागपुर यूनिवर्सिटी ने फिक्स किया होगा, अमरावती यूनिवर्सिटी ने फिक्स किया होगा. So fine. If it is like that, then it is so simple. Can you write how many of your colleges are grade? Can you write down? I mean, if you are okay with sharing, I would love to see your college name and if at all it is accredited, NAC accredited. Can you please write all participants? I am writing my college PCE. It is A+. So can you all of you write down just your name of the college with city and grade? So we can actually target upon. अगर हम B++ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी ग्रेड है, पर B++ को हमको A लेके जाना है बस. तो वो कैसे लेके जाना है, वो गैप आइडेंटिफाई करनी है. एंड दैट इज वेयर वी आर वर्किंग अपॉन एंड दैट्स व्हाई दिस सेशन. So I am requesting all of you, Ambedkar College A grade. Yes, Pankaj Nimbalkar sir, thank you so much. So please keep posting your name of the college so that I'll come across that what colleges you are belonging to, what requirements you feel like having. अगर हम B+ है, अगर हम B है, अगर हम C है, फर्क वो नहीं पड़ रहा है. हम जाना कहाँ चाह रहे वो इंपॉर्टेंट है. आज कुछ भी रहेगा,
आज मैं B+ रहूं, पर मेरी तैयारी A पे जाने की है कि नहीं, इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं क्या हूं ही नहीं, हमको आज बहुत लग रहा है कि हमने अगला नैक का कमिटी आएगा तो हमको A++ देना चाहिए। तो वो क्यों देगा? क्योंकि आप कुछ तो भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने वाले हो। सो कीप कीप राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ सेकंड इज टीचिंग लर्निंग। ये तो प्योरली मेरे हाथ में है। देखो, करिकुलम डिजाइनिंग, इफ यू आर अफिलिएटेड कॉलेज, you can be a part of it. If you are board of studies member, if you are any statutory body member of our Nagpur University or whatever university your college belongs to, but officially you are not eligible to frame the syllabus, to design the scheme. टीचिंग स्कीम तुम्ही बदलू नाही शकत जर तुम्ही अफिलिएटेड कॉलेज आहे. बदलवू शकता अगर आप ऑफिस बेअरर हो युनिव्हर्सिटी में, बट वो भी यू विल बी वन ऑफ द ऑफिस बेअरर्स among 600 institutions like in Nagpur. वो फर्क नहीं पड़ेगा. तो क्राइटेरिया 1, करिक्युलम एस्पेक्ट्स. तो हम क्या करते हैं, चलो सगळं देऊन टाका. सगळं करिक्युलम तर आपण केलंच नाही, युनिव्हर्सिटीने दिलेलं आहे. वी हॅव युनिव्हर्सिटी फिक्स सिलेबस, syllabi, academic scheme, teaching load, workloads, number of practicals, hours, number of these things. So obviously it is there. So if at all it is there, then तो हमको कुछ नहीं करना है. फिर हमको 150 मार्क मिलेंगे कैसे? हाउ वी आर गोइंग टू फेच 150 मार्क्स जस्ट बाय अटैचिंग द सिलेबस विच हैज बीन ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड एंड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स? नो. देन द पॉइंट, उसमें सबसे मेरे को अच्छा क्या लग रहा था, प्लानिंग. करिकुलम किसी ने कुछ भी दिया होगा, लेकिन मैं प्लान क्या कर रहा हूँ. What way I am planning is I am at liberty. You are not autonomous college, fine, but you have liberty. Academic planning, academic flexibility, exercising academic flexibility, and its effective implementation. या 3 गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या आहे. कोणत्या कोणत्या? अकॅडमिक फ्लेक्सिबिलिटी आहे ती वापरायची. You can be an affiliated college, you can be university, autonomous university, or actual university, state university, like Nagpur University, fine, but or private university like Ajink University, D.Y. Patil College. And I mean, there are so many private universities now in the country, hundreds of private universities. So you can be the part of that. But the point is, you have absolute academic autonomy, even if you are not UGC autonomous. Because हमको flexibility है ना भाई. We have flexibilities. We can work within this daira, but we can go up and down. We can go up and down. We can move around. We can go beyond classrooms. We can go into industry and take classes. We can go on the lawns and take classes. हे सगळं आम्ही काही करू शकतो. ये हमको रिअलाइज नहीं होते रहता की आम्हाला वाटतं की आम्हाला युनिव्हर्सिटीज म्हटलं की पर वीक 3 लेक्चर्स और 2 प्रैक्टिकल और 1 थियरी, हमको वही लेना है. नहीं, ये मिनिमम है, पर इससे ज्यादा हम ले सकते पक्का. If like maths people in my college, there are most of the teachers who ask for extra class. Like university has prescribed 3 theory per a week, and they always ask for 4 or 5. कारण syllabus पूर्ण होत नाही. सिलेबस नहीं पूरा हो रहा. सिलेबस पूर्ण होत नाही म्हणून 3च्या जागी 4 घेतोय ना, तो कोई यूनिवर्सिटी रोक रही क्या आपको? सो टेकिंग मोर, रनिंग एन एक्स्ट्रा माइल, टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास इज एब्सोल्यूट एकेडमिक लिबर्टी. इसको ध्यान रखिए कि मेरे को कितने नंबर ऑफ क्लास मिनिमम लेना है, यूनिवर्सिटी ने बताया. इसको बोलते हैं करिकुलम एनरिचमेंट. इसको बोलते हैं एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी. एनरिच करना आहे मेरे को. जे युनिव्हर्सिटीने सांगितलं, जे एका छोटं कॉलेज करताय, जे मोठं कॉलेज करताय, जे माझं करताय, जे नागपुरातलं करताय, जे चंद्रपूरला नाही करताय, जे हिंगणघाटला कॉलेज आहे ते वेगळं. अरे मला पूर्ण लिबर्टी आहे. तो पहली सबसे बड़ी बात ये है कि लेट अस एक्सेप्ट and understand that you have academic flexibility. आणि त्याला 50 मार्क आहेत यूनिवर्सिटीच्या नॅक सिस्टममध्ये. अगर आप अच्छी से एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर रहे हो, तो आपका करिकुलम डिलिव्हरी बहुत एनरिच होने वाला है. इट गेट्स एनरिच्ड. मला कसं शिकवायचं आहे हे मला पूर्णपणे माहीत आहे. हां, आणि व्हॉट टू टीच इज युअर सिलेबस. व्हॉट टू टीच, काय शिकवायचं आहे. दीज आर द चॅप्टर, दीज आर द टेक्स्ट बुक, दीज आर नंबर ऑफ क्लासेस. ऑल these are what to teach. And there is an absolute liberty, absolute autonomy in how to teach. कुठल्या युनिव्हर्सिटीत म्हटलंय की वर्गात गेल्यावर पहिल्या 10 मिनिटात ना रिव्हिजन नका करू, शेवटच्या 10 मिनिटात रिवाइज नका करू, प्रश्न नका विचारू, मुलांना इन्व्हॉल्व नका करू. मुलांना इन्व्हॉल्व करा. इतकं मायक्रो लेवलचं प्लॅनिंग UGC आपल्यासाठी युनिव्हर्सिटी करत नसते. कारण दॅट इज दी कोर एरिया
where teacher can reflect upon. That is the core area. That is the liberty which teacher has got with his knowledge, with his expertise, with his experience. आणि मला 30 वर्ष एक्सपिरियन्स असेल तर मला शिकवायची पद्धतच वेगळी आहे माझी. 5 साल वाला अलग प्रिपेयर करता हूँ, 10 साल वाले की स्टाइल अलग है, 15 की अलग है. So let me reflect upon my experiences on my students. Let me show my knowledge. Let me show my expertise. Let me handle my students my own way. का नाही करू शकत? नक्की करू शकतो. So now point is flexibility, integrity, liberty. What to teach is syllabus, but how to teach is again an academic flexibility and academic autonomy also. तेव्हा कुठे हे सगळे मुद्दे जर आम्ही लक्षात ठेवले तर माझा क्रायटेरिया 1 चांगला बनणार आहे. 150 मार्क हवे आहेत मला. पण नॅक कमिटी अगर जेन्युइन है, नॅक वाले अगर स्मार्ट है, आय एम ऑल्सो नॅक असेसर. बट पॉइंट इज प्रत्येक नॅक असेसरला एक आपलं पुन्हा पर्सनल असतंच. 70% तर ऑलरेडीच डीव्हीव्हीच्या आधीच सगळं आटोपलेलं असतं. डीव्हीव्ही नंतर कन्फर्म होऊन जातं. Data validation and verification. I hope you know all the terms IQAC and AIQA and DVV या सगळ्या टर्म्स आपण नॅकच्या या सगळ्या टर्म्स ऐकलेल्याच असतील. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर accredited नाउ these days. तरी पण I was understanding something that there are not even 20% institution in the country who are accredited. Sorry. थोडा खोकला झालाय. टीचिंग, लर्निंग एंड इव्हॅल्युएशन. क्राइटेरिया 2. क्राइटेरिया 1 है 150 मार्क. उसमें वो सिलेबस की फाइल बनाना, लगाना, उसके टीचिंग प्लान लगाना, ये सब ठीक है. ये सब ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है? यूजिंग एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, यूजिंग द नॉर्म्स, द वेज, द मीन्स टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग so that the curriculum delivery will get enriched and academic flexibility. यूज पहिला मार्क. तर 150 मार्क मिळवायला त्याच्यात जे लिहिलंय मी ते वाचत नाहीये, ते तुम्हाला दिसतंय स्क्रीनवर. मेरा मन ये कर रहा है कि मैं आपसे वो शेयर करूं जो आपको एक्चुअली करना है, ये खरोखर इफेक्टिव चीज है, वो करनी है. सेकंड क्राइटेरिया कम्स आउट टू बी टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन. टीचिंग, लर्निंग एंड इव्हॅल्युएशन. अब इच्छात पुष्कळ 2.1, 2.2, 2.3 सगळं भरपूर आहे. ते तुम्ही स्क्रीनवर दिसताय तुम्हाला. मेरे को वो उससे मतलब नहीं है. मेरे को अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है? 2.6. अरे मग त्याला तर 30च मार्क आहे. वो छोटा पॉइंट आहे. नाही. स्टूडेंट परफॉर्मन्स एंड लर्निंग आउटकम याला फोकस करायचं आहे मला. 2.6 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. वो मेरा गोल है, वो मेरा फोकस है. और उसका रिजल्ट कहाँ आने वाला है? 2.7. 2.6 मेरा गोल है and 2.7 माझा रिझल्ट येणार आहे. व्हॉट इज रिझल्ट? स्टूडेंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वे. द पॅरलल जसं आपण SSR सबमिट केला की स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्वेसाठी मेल्स जातात मुलांना. And students then write their own feedbacks and which is received by NAC obviously, which is then analyzed officially. And it's a computerized method. ये सब मिलके 70% है ना. All there are two parameters, quality and quantity. So all quantity thing, इतके वर्कशॉप, इतके क्लास, असा रिझल्ट, जिथे जिथे आकडे आले, ह्या ज्या नंबर्स आहे, number of years, number of courses, number of add-on courses, number of technical courses, number of workshop, number of student placed, number of merit student, number of teachers have research papers, number of research paper, number of patent, जो जो सब नंबर है मतलब वो क्वांटिटी है. तो क्वांटिटी के लिए इट इज डिफरेंट असेसमेंट जो हमारा डायरेक्ट हो रहा है. द मोमेंट यू सबमिट SSR उसके बाद डायरेक्ट वो आपका असेसमेंट हो रहा है और आपको ऑन द स्केल ऑफ 4 you start getting 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.6. 3.6 is A double plus. So 1.2 काही पण मिळू शकतं. Depending on the quantity of the data, depending on the quantity of each criteria you are mentioning. तुम्ही 2 वर्कशॉप घेतले असतील की तुम्ही 10 घेतले असतील, फरक तो पडत आहे. तुमच्याकडे सगळ्या रिसर्च पेपर, सगळ्या टीचरचे मिळून 100 टीचर म्हणून तुमच्याकडे 200 पेपर आहे आणि 100 टीचर म्हणून 1000 पेपर आहे. फरक तो पडेगा. क्वांटिटी मैटर्स. नंबर तो मैटर करणार. तुमच्याकडे एडमिशन स्टेटस ज़्यादा है, तुमको ज़्यादा नंबर मिलने वाले. सो जो नंबर वाला गेम है वो पूरा क्वांटिटी है.
आणि जिथे फिलॉसॉफी आहे, जिथे क्वालिटी आहे, जिथे सोच है, जहां सिस्टम है, जहां अप्रोच है, ऑल दैट कम्स अंडर न्यू इनिशिएटिव्स है, डिस्टिंक्टिव्हनेस आहे, क्वालिटी मॅनेजमेंट को क्वालिटी मॉनिटरिंग आहे, हे सगळं जिथे आहे त्याला म्हणतो आपण QM, क्वालिटी, QL आणि QL. तो क्वांटिटी भी हमको फोकस रखनी है. वर्षभरातून मुलांचे 2 इव्हेंट झाले, शक्यच नाही. बच्चे तो इवेंट में ग्रो हो रहे, बच्चे तो इवेंट से ग्रो हो रहे, क्लब से ग्रो हो रहे, फोरम से ग्रो हो रहे, स्टूडेंट फोरम, स्टूडेंट क्लब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, स्टूडेंट स्पोर्ट्स, स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलर, स्टूडेंट को करिकुलर. ये तो मेरा मेन फोकस होना चाहिए. तो 2.6 मेरा मेन फोकस है, मेरा गोल है 2.6 एंड द रिजल्ट शुड बी 2.7. मग याच्यासाठी जे जे करायला लागतं आहे, अपन स्लाइड में देखेंगे आगे, तो वो मेरे को, मेरा मतलब है कि क्राइटेरिया 2 में अगर मेरे को 200 नंबर और एफिलिएटेड में, ऑटोनॉमस में 300 नंबर लाने हैं, तो पॉइंट आई वांट टू पुट अक्रॉस इज you have to work, you have to focus, you have to set your goals on student satisfaction and their learning outcomes, not teaching inputs. टीचिंग इनपुट घ्या तुम्ही, मी 12 क्लासच्या वेळी 16 घेतले, काही फरक नाही पडत अगर रिजल्ट सही नहीं लग रहा है. अगर रिजल्ट सही लाना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो क्राइटेरिया 2 इज 200 मार्क्स फॉर यूनिवर्सिटीज एंड 300 फॉर ऑटोनॉमस एंड ऑफ कोर्स एफिलिएटेड के लिए भी कुछ होगा. दैट इज ऑलमोस्ट सेम है वो. क्राइटेरिया 3 ये आपका खुद का क्राइटेरिया है. दिस इज टीचर. कॉलेज से कोई क्लर्क कोई पेपर नहीं छापना, कॉलेज की रिसेप्शनिस्ट पेपर नहीं निकलेंगी, कॉलेज के डेस्क बेंच और अल्ट्रा मॉडर्न एयर कंडीशनिंग भी लगी होंगी, तो वो कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, वो कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते. जाता कौन है? फैकल्टी. तो क्राइटेरिया 3 इज मोस्ट विन विन क्राइटेरिया जो टीचर आप लोगों के लिए, तुम्हारे मेरे लिए जो क्राइटेरिया है, दैट इज क्राइटेरिया 3. और इसमें पूरे में पूरे नंबर लाना ये मेरी जवाबदारी रहनी चाहिए. यूनिवर्सिटी में 250, ऑटोनॉमस और इसमें 150. सो 150 ऑन 150 हम ला सकते हैं ऑन in criteria 3. Please see the content of the key indicators. What are key indicators? You can read. So important is 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. अब जैसा मैंने बोला, हर एक में ना, हर क्राइटेरिया में एक इंपॉर्टंट हिंट है. क्राइटेरिया 1 मध्ये मी काय म्हटलंय? अकॅडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, अकॅडमिक ऑटोनॉमी, यूजीसी वाली नाही, मला स्वतःला घ्यायची जी ऑटोनॉमस स्टेटस घ्यायचा आहे ते, एंड टीचिंग लर्निंग मेथड ऍडजस्ट, स्टूडेंट फ्रेंडली मेथड करके करिक्युलम का एनरिचमेंट, हा त्याचा फोकस पॉइंट आहे. आणि तशानुसार प्लॅन आणि इम्प्लिमेंट करायचं, हा माझा फोकस मुद्दा आहे. मेरा पर्पज ऑफ माय क्राइटेरिया 1. मग ते 150 पैकी मला 140 मिळाले तर चालतील, 130 ही चालतील, बट फायदा तो कॉलेज का होना चाहिए, फायदा बच्चों का होना चाहिए, फायदा कॉलेज की बिल्डिंग का होना चाहिए, फायदा कॉलेज की एनरिचमेंट का, कॉलेज की इमेज बिल्डिंग का होना चाहिए, फायदा वो होना चाहिए. नंबर हो पाएंगे नहीं. अगर मैं ये फोकस रख रहा हूं तो मैं बता रहा हूं आपको 150 में 150 नंबर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं. बट पॉइंट इज मैं फोकस क्या रख रहा हूं. पॉइंट अगर मैंने मार्कच ठेवले नाही शेवटी तर मग काहीच नाही करता येणार. सो पॉइंट इज करिक्युलम आस्पेक्ट मध्ये आम्हाला काय विचार करायचा आहे? अकॅडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, करिक्युलम एनरिचमेंट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से टीचिंग लर्निंग को प्लान करना है, एंड व्हाट टू टीच फिक्स है, लेकिन हाउ टू टीच में फ्लेक्सिबिलिटी, लिबर्टी, एंजॉयमेंट है. ये हो गया पार्ट 1. जैसे पार्ट 2 मध्ये काय आहे? 2.6 लर्निंग आउटकमला फोकस करून त्याला काय करायचं आहे, बेस्ट ऑफ द लर्निंग आउटकम लाने के लिए और स्टूडेंट परफॉर्मेंस और स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन रखने के लिए 2.6 याला फोकस ठेवून मग वरचे सगळे पॉइंट मध्ये बदलाव लाव, अभी तूफान आपका एक कॉलेज का लेवल ही बढ़ जाता है. तसंच आता याच्यामध्ये क्राइटेरिया 3 में क्या फोकस पॉइंट है? 3.7. अरे याला तो 20 मार्क है. अरे 20 मार्क जो है ना वो 250 नंबर देने वाले आपको, 250 भी नहीं, 350 नंबर देने वाले. विल कम इनटू दी प्रोग्रेसिव स्लाइड्स. सो रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, इसमें फोकस क्या है मेरा? 3.7 कोलॅबरेशन्स. आप बोलेंगे अरे ये काय, हे तर 20 मार्क आहे, पण इनोव्हेशन कुठून येईल? कोलॅबरेशन मधून. कन्सल्टन्सी कुठून येईल? कोलॅबरेशन मधून. एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीज कुठे मिळतील? कोलॅबरेशन मधून.
कोलैबोरेशन एक नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन को अगर मैंने फोकस कर लिया ताकत से, इंडस्ट्री के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, एनजीओ के साथ, आजू बाजू के कॉलेजेस के साथ नेटवर्क होना चाहिए मेरा। मेरे को नेटवर्क जहां मिल गया, मेरे को सॉरी, जहां मेरे को नेटवर्क मिल गया, कोलैबोरेशन मिल गया, मेरे मेरे पार्टनर्स मिल गए, मेरे पार्टनर मिल गए तो मेरे को वो रिसर्च भी देंगे, मेरे को कंसल्टेंसी भी मिलेगी, मेरे को ग्रांट भी मिलेंगी, मेरे को पैसा भी आएगा, मेरे को सब कुछ मिल रहा है। तो फोकस मेरा है 3.7 और थोड़ा बहुत 3.6, ये दो पे फोकस करो तो ऊपर के 150-200 मार्क आपको अपने आप मिलेंगे। प्रत्येक क्राइटेरिया एक फोकस पॉइंट असतो, तो फोकस पॉइंट अगर हमने मिस कर दिया है और बाकी कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। फोकस आहे इथे सगळ्यात टार्गेटवर काय करायचं आहे, कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। वो मैंने करना शुरू कर दिया, मेरे को कंसल्टेंसी आएंगी, मेरे को रिसर्च पेपर हो जाएंगे, मेरे को फाइनल इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट हो जाएंगे, मेरे को सोसाइटी के साथ प्रोजेक्ट हो जाएंगे, मेरे को कॉर्पोरेशन ग्रामपंचायत के साथ प्रोजेक्ट हो जाएंगे, त्याचे मार्क मला तिकडे 6 मध्येही मिळणार, 5 मध्येही मिळणार, क्राइटेरिया कहीं पे मिल जाएगा, यू नेवर नो। ये कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग और एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटीज ये इतनी जबरदस्त फोकस पे रखिये की हे केलं ना तर बाकी सगळं आपोआप मिळणार आहे तुम्हाला, बाकी सगळं आपोआप मिळेल, त्याच्यात त्याच्यात आपल्याला मुद्दाच नहीं है। तो वो मेन पॉइंट है। तो मेरे को फोकस क्या करना है, क्राइटेरिया 3 अगर मेरे को सही नंबर लाने ना 200-250, तो मेरे को चाहिए मेरा फोकस कोलैबोरेशंस, नेटवर्किंग एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज। नेक्स्ट, फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये तुम्हारी कॉलेज की मैनेजमेंट की बात है, कॉलेज की मैनेजमेंट क्या देती है, कितने बिल्डिंग फंड दे रही है, क्या कर रही है, इसको टीचर ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने मैनेजमेंट को सिर्फ कन्विंस करना चाहिए। दे शुड कन्विंस मैनेजमेंट दैट सर इफ वी कैन क्रिएट एन एयर कंडीशनिंग कंप्यूटर लेबोरेटरी, स्टूडेंट्स कैन सिट इन समर टाइम फॉर मोर टाइम। 48 डिग्री 48 डिग्री में बच्चे अगर लाइब्रेरी में बैठेंगे तो नहीं चलेगा। सर लाइब्रेरी थोड़ा कूलर तरी लावा, मुलं बसले पाहिजे। कुछ लायब्ररीची किताबें, कम्प्युटर लॅब एअर कंडिशन आहे ना, तर तिथे एक 200 कामाची पुस्तकं तिथे ठेवा और लाइब्रेरी के बुक्स बच्चों को एयर कंडीशन में यूज करने दो, कूलर में यूज करने दो, जहां अच्छे पंखे हैं डिपार्टमेंट में भेज दो। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। क्रायटेरिया 4ला 100च मार्क आहे, इम्पॉर्टंट आहे। मग आपण म्हणतो नाही आमचं मॅनेजमेंटनी तर पेंटिंग नाही मारलं, सफेदी नाही केली, कम्प्युटर नाही दिले मॅनेजमेंटने 8 वर्षापासून, वो बात अलग आहे। मला फोकस पॉइंट काय आहे माझा तिथे, flexibility to students. Is my infrastructure, is my learning resources, are my infrastructure resources, are my teaching resources flexible and available easily for my students, is the point which 100 marks of criteria 4 is demanding for. So fourth criteria is about infrastructure and learning resources. So इसको कैसे बच्चों के फ्रेंडली बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर असं पाहिजे मुलांना मजा यावी। कभी लाइब्रेरी में चाय पिला दो, कभी कॉफी पिला दो, आपका बर्थडे है यार, आप बर्थडेला आपण 1000-5,000च्या पार्ट्या करतो। आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, त्यांना एक 10 रुपयाचा चहा म्हणजे 600 रुपये, एक समोसा एक चाय खिला दो आपके बर्थडे पे हर साल। फ्लेक्झिबिलिटी क्या दे रहे हो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये हॅपीनेस कसा क्रिएट होतोय। त्यांना पंखा नसेल पण त्यांना तुम्ही प्रेमाने एक अर्धा कप चहा दिलेला आहे, वो वहां बैठना शुरू करते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विल स्टार्ट राइपिंग इट फ्रूट्स, अपने को मिलना शुरू हो जाएगा। अरे यार इन्फ्रा कशी असली तरी पहा मुलं बसलेत, मुलांना काही कंटाळ येत नाही, मुलांना आवडतंय। The point is infrastructure utilization with innovative practices. I was just saying, it talks about IT infrastructure, it talks about library as a learning resource, it talks about library here and there and physical facilities, fine. आता त्याच लायब्ररीत मेरे कॉलेज में मैंने क्या कर दिया, लायब्ररीमध्ये जेवढे मॅगझिन्स आहेत 25-30 मॅगझिन येतात, इलेक्ट्रॉनिक्स टुडे वगैरे येतात, आउटलुक येतं, प्रतियोगिता दर्पण येतं, कॉम्पिटिशन सक्सेसिव्ह, सगळे भरपूर मॅगझिन्स येतात, आउटलुक येतं, वीक येतं, हे सारे मॅगझिन्स आते। मैं क्या करता हूँ, हे वीकली असतात किंवा फोर्टनाइटली असतात किंवा मंथली असतात। सो व्हॉट आय डू इज, एक 8-10 दिवस फक्त ते लायब्ररीत ठेवायचे शेल्फवर, अँड देन आय कीप ऑल दोज मॅगझिन्स, 25 मॅगझिन्स कॉरिडॉरच्या एका टेबलवर मांडून देतो। सी, इफ यू स्टार्ट कीपिंग इट इन द कॉरिडॉर्स, बच्चों को कुछ इश्यू नहीं करना है, लायब्ररीत जायचं नाही, गर्मी नाही, घाम नाही, तिथे गडबड नाही, तिथे इश्यू नाही, येता जाता कॉरिडॉरमध्ये मस्त मासिकं सापडले तर ते वाचणार। मेरे यहाँ पढ़ रहे बच्चे, मैंने वहाँ चाय कॉफ़ी लाना भी अलाउ कर दिया है। सो चाय कॉफ़ी है, टेबलवर मस्त इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, कम्प्युटर सायन्स फॉर यू, आउटलुक, इंडिया टुडे, रीडर्स डायजेस्ट अशासारखे एक्सलंट मॅगझिन्स पडले आहे, कोणालाही मोह होईल थोडंसं वाचायला।
ते 2 मिनिटं मोबाईल बाजूला ठेवतील अँड दे विल स्टार्ट रीडिंग. इसको बोलते इन्फ्रास्ट्रक्चर लर्निंग रिसोर्सेस का ऑप्टिमल युटिलायझेशन. ते नाही येणार. 25 मॅगझीन वाचायला मुलं लायब्ररीत येणार आहे का? त्यांना वेळच नाही आहे. उनके पास गूगल है, इन शॉर्ट्स है, उनके पास मोबाईल में 10 प्रकार की न्यूज ॲप्स है. मग ते येणारच नाही. हां, पण त्यांना जर तुम्ही पाणी पिऊ दिलं, चहा कॉफी पिऊ दिला, बेंच डेस्क बाहेर आहेत आणि तिथे मॅगझीन पडले आहेत अट्रॅक्टिव्ह सुंदर, तर नक्की वाचणार. तो innovation into criteria 4. I understand the major role of criteria 4 is with management. आणि त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलं पाहिजे, ब्लॅकबोर्ड्स नवीन दिले पाहिजे, प्रोजेक्टर दिले पाहिजे, कॉम्प्युटर दिले पाहिजे, नवीन पुस्तकं घेतले पाहिजे. ह्या सगळे बजेट ओरिएंटेड गोष्टी आहेत. सो यू कॅन सजेस्ट द न्यू वेज, द लोअर बजेट थिंग्स, so that management will get convinced for spending that much amount for all this infrastructure. बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा इम्पॉर्टंट आहे लर्निंग रिसोर्सेस. यावर मॅनेजमेंटनी पैसा खर्च करावा, असं तुम्हाला जर वाटत असेल, तर तसं तुम्हाला पॉइंट वाईज कन्व्हिन्स करून त्यांच्याकडून ते करून घ्यायचं आहे. यू आर मेंबर ऑफ लोकल मॅनेजिंग कमिटी. तर तिथे ते करायचं. पण मुद्दा वो नहीं है कि मेरे को क्या करना है. मुद्दा ये है कि मेरे को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या करवाना है, मेरे को उसमें स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे बनाना है, मेरे को वो मुद्दा है. फिफ्थ फिफ्थ तो सबसे बड़ा फोकस एरिया है, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन. ऐसा हम क्या कर रहे हैं कॉलेज में जिससे स्टूडेंट को एकदम प्रोग्रेसिव बनना है, स्टूडेंट का प्रोग्रेशन बहुत अच्छा बढ़ रहा है, एकेका वर्षात एकही ठिकाणी फेल न होता, एक बार एंट्री कर ली, 4 साल में डिग्री हो गई, 3 साल में डिग्री हो गई, फ्लाइंग कलर्स हो गई, गुड नंबर्स हो गई. ये कैसे अचीव करेंगे? तो वो क्या स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम मेरे को बनानी में देनी है, वेदर इट इज फिजिकल, लॉजिकल, प्रोसेस वाइज, प्रोसीजर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, वॉट एवर वे, बट वो स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक सक्सेसफुल स्टोरी बन जाए. इसके लिए मैंने क्या किया है, 100 मार्क है, नैक 100 मार्क दे रहा है मेरे को, बट जब वो नैक की कमिटी आती ना, आईआईटी के प्रोफेसर्स रहते, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेवल के लोग रहते, उनको जब समझते हैं यार ये तो अलग ही सोच है, द मोमेंट दे थिंक अबाउट योर विजन एंड सी योर विजन इन टू योर डॉक्यूमेंट्स, देन नैक मजबूर हो जाएगा आपको ए प्लस देने के लिए. सो 5वां क्राइटेरिया हो गया. सिक्स्थ, गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, विजन. अरे if you are a junior most teacher in your college, keep guts, keep daring to tell your HOD, टीचर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, डीन, जो कोणी रिस्पॉन्स, आपला IQAC कोऑर्डिनेटर, उसको जाके बोलो यार ये विजन में गडबड आहे, आपण बदलूया. बोलू 4-5 इंडस्ट्री लोकांना बोलू, 2 व्हाईस चान्सलरशी फोनवर बोलू, पण हा विजनचं डॉक्युमेंटमध्ये मजा नाही. आजच्या काळात हे सुटेबल नाही. 15 साल पहले आपका विजन मिशन बना है, उसको रिवाइज तो कर ही सकते ना. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब इसमें सिक्स्थ में विजन मिशन है, फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज, याच्यावर कोण काम करे, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम. You have to work on all these criteria, then and then you can understand that yes, it is useful. Otherwise इसको, अदरवाइज नंबर से नंबर, क्राइटेरिया से क्राइटेरिया जोड़ते बैठे ना, 2 साल वैसे भी खराब होने वाले हैं. और वैसे ही खराब होने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, मात्र आपको ग्रेड मिलेगा. ग्रेड मिलने से कुछ नहीं होता. कोई A+ देखने से उसकी एडमिशन नहीं डबल हो जाती, A+ रहने से कोई आपकी पगार डबल नहीं हो जाती, A+ होने से कोई अलग चमत्कार नहीं होता. हाँ, बट A+ लाइक आपकी क्वालिटीज है, तो बच्चे आपके कॉलेज का नाम बड़ी प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से लेते हैं. यार मेरा कॉलेज, तेरे को 12वीं हो गए, गो टू माय कॉलेज इज नंबर 1. वैसी फॅसिलिटी नाही, काय मस्त टीचर आहे, काय इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, अरे इतकी फ्लेक्सिबिलिटी देतात, तुम्ही वर्षातून 10 वेळा नॅशनल कॉन्फरन्सेस वगैरे स्टुडंटचे अटेंड करू शकता. त्याच्यातही कॉन्फरन्ससाठी जायला वगैरे कॉलेज अर्धे पैसे देतं, पूर्ण पैसे देतं, ट्रेनचं तिकीट देतं, काहीतरी यू नो. बच्चे जब स्टूडेंट वेलफेयर और फैकल्टी जब वेलफेयर की बातें नहीं करेंगी, तो कॉलेज का ब्रांड नहीं बन सकता. कॉलेज का ब्रांड तब बनता है जब लोग तारीफ करेंगे. तारीफ करने के लिए आपको सिस्टम में इनोवेशंस चाहिए, तारीफ करने के लिए आपको सिस्टम में बजट प्रोविजंस चाहिए, तारीफ करने के लिए आपको स्टूडेंट को फ्रेंडली और कंफर्टेबल बनाना है कॉलेज में, उसको सीखने का बर्डन ही नहीं लगे. 7 क्लासच्या ऐवजी तो 12 क्लास जरी केले तरी त्याला कंटाळाच नाही आला पाहिजे. ही प्रोसेस, पॉइंट आई वांट टू पुट अक्रॉस इज प्रोसेस. सो गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये एक ऐसा पॉइंट है, इसमें इंटरनल क्वालिटी को मोटी टर्म आई, बट उसको सोचना पड़ेगा. उसको सोच के ही मेरे को 100 नंबर लेना है.
So 100 marks are on governance, leadership, and management. And last one is institutional values, best practices, and distinctiveness. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काय माझ्या समाजाकरता मेरा एज्युकेशन लेते लेते मेरा पढ़ाई करते करते और आपलं शिकवता शिकवता काहीतरी समाजाचं भलं होत आहे का, ये मुद्दा है. मैं पढ़ा रहा हूँ 5-10 गरीब बच्चों को और बिठा लिया क्लास में, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. कह दिया मैंने. मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को बोल दिया जाओ अपनी गली के आज प्रॉब्लेम लेके आ जाओ सिव्हिलचे. आणि मग असे बरेचसे नवीन-नवीन उपक्रम जेव्हा आपण अंमलात आणू, प्लॅन करू, इम्प्लिमेंट करू, त्यातून मग जे सगळ्यात आवडतं, सगळ्यात पॉप्युलर जे आहे, त्याला म्हणू आपण क्रायटेरिया नंबर 7.3 म्हणजे इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस. असे 100 उपक्रम आम्ही केले असतील. आम्ही एक्झाम पॅटर्न बनवलं असेल, आम्ही काही वेगळं असेसमेंट टूल्स क्रिएट केले असतील, आम्ही काही वेगळे फील्ड ट्रिप्स क्रिएट केल्या असतील, आमच्याकडे वेगळा सर्व्हे काही असेल, आमच्याकडे मुलांना जास्त अपॉर्च्युनिटीज राहत असतील, आमच्याकडे कल्चरलची वेगळी फॅसिलिटी असेल, काहीतरी आमच्याकडे वेगळं असेल, नवीन असेल, स्पेशल असेल. हे स्पेशल असेल तर त्याचं नाव 7.3 म्हणजे इन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्टिव्हनेस. आणि ह्या कशातून निघणार आहे? अनेक जे बेस्ट प्रॅक्टिसेस आपण करत राहू कॉलेजमध्ये, त्याच्यातून निघेल. Can you add some of you, if you are only 3 of you could write, can you write one distinctiveness about your institution? देखो काय मला म्हणजे तुम्हारे कॉलेज की यार एक बेस्ट चीज बताओ. काहीतरी नवीन सांगा, काहीतरी वेगळं काय आहे? दॅट इज युअर 7.3 अँड 7.2. 7.1 म्हणजे ठीक आहे. ग्रीन ऑडिट है, एकेडमिक ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट है. मतलब एक बेसिक वैल्यू सिस्टम बढ़ा रहे, अवेयरनेस निकाल रहे. नाउ आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल 27 पार्टिसिपेंट, प्लीज राइट वन थिंग इन अ चैट बॉक्स, सो दैट हमारे लिए सबके लिए देखो एक बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा हमको नैक के लिए. एक एक जन लिखिए कुछ ना कुछ. मेरे यहाँ मैं लिख देता हूँ, मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट वो है, नॉलेज सेंटर है. वो क्या है मैं आपको समझा दूंगा, पण माझ्या जो एक वेगळी गोष्ट आहे नॉलेज सेंटर. वैसे सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ की आप ऐसी आपकी क्या डिस्टिंक्टिव्हनेस आहे. म्हणजे क्रायटेरिया 7.3 चे जर तुम्ही इंचार्ज असाल तर तुम्ही काय लिहिणार आहे. 7.2 की इंचार्ज होंगे तो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू आर फॉलोइंग फॉर स्टूडेंट्स बेनिफिट, फॉर टीचर्स बेनिफिट, फॉर सोशल बेनिफिट्स. सो राइट डाउन. Just write down. If you remember, many of you can be NAC committee members, many of you can be criteria in charge. आपल्यातले बरेचसे लोक 7वा क्रायटेरिया इंचार्ज पण असतील. सो जस्ट राइट डाउन व्हॉट वॉज युअर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड व्हाट आर योर इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस. ये मेरे ही कॉलेज में होगा, मेरे ही मतलब एक दो कॉलेज में और भी हो सकता है, वो बात नहीं है, पर मेरा डिस्टिंक्टिवनेस है. सो स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर ओन कॉलेज, Unnati and ECGC cell. Great, sir. Great. Please keep posting something. Free legal aid. Good. Vaishali Sukhdev. Good. Thank you, madam. Thank you, Pankaj sir. Come on, write down something. यार कुछ तो होगा तुम्हारे कॉलेज में यार. हम लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं. We are proud of our employment, our employee, our college, our organization, my parent organization. तर त्याच्याबद्दल असं काहीतरी असेल वेगळं. मी लिहिलं एक नॉलेज सेंटर. माझ्याकडे अनेक बरेच अशा काही काही गोष्टी आहेत. तर तशा काहीतरी तुमच्याकडे असणार, प्रत्येक कॉलेजला असतात. फक्त ते लिहायचे आपल्याला इथे. पटापट लिहा. स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल झिमटे सर म्हणतात आहे. गुड. इंट्रामूट कोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड. ये क्या रहता है सर? सोना कुमार, आप लॉ कॉलेज के हो क्या? यस मैडम, यस सर. ओके मैडम. हाँ, एक्चुअली आई मॉक ट्रायल्स. मूड कोर्स. हाँ, मैं देखा. Mock आई trials. वाज इन वन लॉ स्कूल इन डीवाई पाटिल लास्ट मंथ. सो आई Okay. सॉ दैट मॉक टाइप का रहता है, राइट? Yes, every colleges does competition directly, but Yes. it is a uniqueness skill in Vidarbha that Right. our college does it intra-moot course for the students. Great. Good initiative. So Lalita Kumar says counseling center. Yes, it is very important. Student welfare center. Nirav Pandya says keep on writing something यार. मतलब मेरे को मेरे कॉलेज का ऐसा क्या है जो मेरे को लग रहा है यार ये मेरे ही कॉलेज में है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Anything else? Only I got, I think, Ram sir, Nirav sir, Lalita ma'am, सोना कुमार, ओम प्रकाश, वैशाली मैडम, पंकज सर. बस 7 ही लोगों ने लिखे भाई. सो आरंट यू अवेयर अबाउट योर ओन दिस थिंग कि आपके कॉलेज में कुछ वी प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट्स टू हैंडीकैप फॉर डेली यूसेज. ग्रेट. सो दिस इज समथिंग डिफरेंट. सो देयर हैज टू बी समथिंग डिफरेंट. देखो डिस्टिंक्टिवनेस लैंग्वेज लेबोरेटरी है. वेरी गुड विनीत सर, थैंक यू. लैंग्वेज लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंट्स टू हैंडीकैप्ड.
वेरी गुड इंस्टीट्यूट, कुछ ना कुछ मेरे कॉलेज में अलग होगा, थोड़ा याद करके लिखिए, यू विल सडनली फील प्राउड अबाउट इट. कसं असतं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके बच्चों की 2 स्ट्रेंथ बताइए. म्हणे नाही, मेरे बच्चे ना कुछ भी हो जाए मारामारी नाही करेंगे. माझी मुलं काय वाटेल ते करतील, पण टीचरची मुजोरी नाही करू शकत. तेवढे संस्कार आमच्या शाळेत आहेत, आमच्या कॉलेजमध्ये आहे. माझ्या डिपार्टमेंटला मात्र एकही मुलाचा आवाज चढू शकत नाही, मारामारी करू शकत नाही. दीज आर द पॉइंट्स. सो गव्हर्नन्स, लीडरशिप. येस सर. संवाद सेंटर. व्हॉट इज दॅट सर? पंकज सर? सर संवाद 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 आहे. संवाद इज लाईक डिबेट वगैरे सारखं? हा डिबेट, जसं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामशी रिलेटेड डिबेट, आपण कॉम्पिटिशन. ग्रेट, 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 ग्रेट सर, ग्रेट. तो पहा, म्हणजे कॉम्पिटिटिव्ह काही मला कंपल्सरी नसतं कॉलेजनी शिकवायला, पण मी केलेलं आहे. कम्युनिटी लायब्ररी, विलास वाणी सर, थँक यू सो मच. सो कीप ऑन थिंकिंग यार, कीप ऑन थिंकिंग. आपल्याला काहीतरी आठवणार. मी जसं सांगितलं, माझ्याकडे लायब्ररीचे पुस्तकं बाहेर पडले आहेत. खूप मुलं वाचतात, सोबत कॉफी चहा पितात आहे, आणि हजारो मॅगझिन्स ओपन आहे. चोरी गेले तरी मला चालणार. नाहीतरी ते मॅगझिन 1 महिन्याने रद्दीतच जाणार होतं. तर ते मला मुलांनी घेऊन गेले तर आवडत है. तो वो एक अलग इनिशिएटिव हो गया. एक ही कुछ अलग इनिशिएटिव हो गया. बहुत कॉलेज में बहुत सारे अलग इनिशिएटिव्स रहते हैं. एका कॉलेजमध्ये मी पाहिलं, ऑटोनॉमस कॉलेज होतं, तर एक्झाम पेपर तिथल्या तिथे साइन करायचे. सॅटिस्फॅक्टरी म्हणायचं. मुलांनी 100% साइन करायचं की आय एम सॅटिस्फाईड विथ द असेसमेंट ऑफ एव्हरी सिंगल क्वेश्चन. दॅट इज अन एक्झाम इनोव्हेशन. दॅट इज अन एक्झाम डिस्टिंक्टिव्हनेस. एकाही मुलाला त्याच्यात म्हणजे रिव्हॅल्युशनची कॉन्सेप्टच काढून टाकली. बडी बात आहे. ऑटोनॉमस कॉलेज होतं, रिव्हॅल्युशनच होत नाही तिथे. कारण प्रत्येक मुलाला प्रत्येक क्वेश्चन व्हॅल्युएट झाल्यावर त्याच्यावर सही करायची की आय एम सॅटिस्फाईड दॅट व्हॉटएव्हर द वे यू हॅव असेस्ड. मला 3 दिले तुम्ही 5 पैकी, पण ते अगदी बरोबर आहेत. ये सिग्नेचर करना है बच्चों को. तो ये एक एग्जाम रिफॉर्म हो गया, ये डिफरेंट. तो उनके यहाँ ये डिस्टिंक्टिवनेस थी. सो देयर आर वेज एंड मीन्स टू अंडरस्टँड. क्राइटेरिया 7. कारण 7 हा तुमचं एक इम्प्रेशन घेऊन जात असतो. जो भी नैक कमिटी आएंगी, जो भी आप बाकी लोग आएंगे, नैक में डिस्टिंक्टिवनेस क्राइटेरिया 7 ला 100 मार्क आहेत. और बहुत बड़ा नंबर है, और हमको कुछ अलग करना है. तो पॉइंट इज, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ देम हु हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस. लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड. ये मैं बोल रहा था, 3 महत्वाचे मुद्दे आहेत. की इंडिकेटर्स आहेत. 7 क्रायटेरियामध्ये, अफिलिएटेडमध्ये 7 मध्ये 31 की इंडिकेटर्स आहे. ऑटोनॉमसला 34 आहे आणि युनिव्हर्सिटीला 34 आहे. पीजीला 32 आहे. सो नाव क्रायटेरिया 7 की इंडिकेटर्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रत्येक क्रायटेरिया जे 3-4 आहेत ते. त्याच्यामध्ये 2 भाग आता. QL, QN. क्वांटिटी, क्वालिटी. मैट्रिक्स असता, सगळं मैट्रिक्स है. ये तो आपने देखा ही होगा, नैक का जब आप फॉर्म भरते हो, एसएसआर भरते हो, या डीवीवी आता है हमको, है ना, डेटा वेरिएशन डेटा आता है, 5 गोष्टी 10 दिवसात सबमिट करा. वो जो डीवीवी जो प्रोसेस है, वो पूरा ऑटोमेटेड आहे, वो सॉफ्टवेअर बेस्ड आहे. आणि ते विशिष्ट डीव्हीव्ही एक्सपर्ट्स असतात, त्यांना ते नॅक पाठवत असतं. हे सगळं आउटसोर्स्ड आहे नॅकमध्ये. नैक खुद खुद इतने डीवीवी, हजारों कॉलेजेस के डीवीवी नहीं करता. इट मस्ट बी आउटसोर्स टू सर्टन एजेंसीज, गुड आईटी इंडस्ट्री एजेंसीज को दिया हुआ है कि जहां से डीवीवी सीधा सीधा आपको 70% का, जहां जहां क्वांटिटी आहे, क्वांटिटी म्हटलं की ते डीव्हीव्ही वाल्याकडे जाणार आणि तो तिथे तुम्हाला असेस करणार, तुमचे प्रूफ चेक करणार, डॉक्युमेंटरी प्रूफ देखेगा, फोटोज देखेगा, बैकड्रॉप देखेगा आपके पीछे के. जेवढी काही ऑथेंटिसिटी येण्यासाठी आपण जे जे काही डॉक्युमेंट लावले आहेत, ते सगळे तो पाहणार. अकॉर्डिंगली आपको 4 में से 3 मार्क पे रखेगा, 2 मार्क पे रखेगा, 3.2 पे रखेगा. सो या फोकस पॉइंट इथे मला काय वाटतंय, की आपल्याला 7ही क्रायटेरियाची नावं कडक पाठ पाहिजे आणि त्याचा फोकस माहीत पाहिजे. ते जे टिपिकल की इंडिकेटर्स नाही, आता जे आपण डिस्कस केले बऱ्यापैकी मुद्दे, ते माहीत हवेत. फोकस काय, गोल काय आहे माझं, ते माहीत पाहिजे. मग त्याच्यानंतर क्वालिटेटिव्ह किती आहेत? 36. आणि क्वांटिटेटिव्ह किती आहे? 79. युनिव्हर्सिटीचं बघतोय आपण पहिला कॉलम. तो क्वांटिटी 79 आणि क्वालिटी 36, इतकं कमी आहे. आणि मग टोटल मॅट्रिक्स किती होता? 115 होता ते युनिव्हर्सिटीसाठी, ऑटोनॉमससाठी 107. affiliated UG programs, it is 93, and for PG college, it is 96. So
the key indicators versus focus point versus goals versus distributing or dividing it into quality and quantity, and then you have to start work. Great. So, 4 point और है. We all know that, and NAC is on 0.4 scale. And if you cross 3.51, then you can get A double plus. आणि 1.5च्या खाली मिळालं, अगर आपको 1.5 ही नहीं ला सक रहे हो आप 4 में से, तो आपका डी ग्रेड मतलब नॉट एक्रेडिटेड है. Anything between them is improvable, is subject to improvement, is absolutely into the उस दायरे के अंदर, पॉसिबिलिटी के दायरे के अंतर्गत है कि ये बहुत ऊपर जा सकता है. बी प्लस है तो बी डबल प्लस, बी डबल प्लस है तो ए प्लस, ए शिफ्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं. 3 अगर आपने क्रॉस कर लेते हो तो आप ए ग्रेड में चले जाते हो. तो मॉडेस्ट टारगेट व्हाट आई फील एवरी इंस्टिट्यूशन, एवरी मतलब जिन्होंने सोचा है नॅक करने का है, ऐसे तर 1000 इन्स्टिट्यूट असतील जी विचारही करू शकत नाही की आपण नॅक करावं. पॅथेटिक सीन है इंडिया में. एज्युकेशन का सीन इज लाइक सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स. असं इतकं वाईट वाटतं की यार एज्युकेशन किस लिए कर रहे बच्चे. हे एज्युकेशन करणार असतील तर यातून चपराशी सुद्धा लागणार नाही. मग डिग्री ती कोणती असो, MSc असो, BCom असो, BSc असो, BCom, MCom, MSc, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक काही असो, त्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो दिखा रही है, जो सेल्फ एस्टीम बच्चों को दिखा रहे, जो एक्सपोजर दे रहे, जो कोलैबोरेशन दिखा रहे, जो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बच्चों को और टीचर को मिल रही, उसको देख के ऐसे लगता है की हा कोणतीही डिग्री येईल तर ये चपरासी भी नहीं बन सकता. And then agencies, government agencies, NASSCOM, they keep on shouting that students passing out from Indian universities, including affiliated and all other colleges except IITs, are 20% only employable. 100 फक्त मुश्किल से 20 बच्चे हैं जो किसी कंपनी के काम के हैं. 80 बच्चे क्या कर रहे, भीड़ बढ़ा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट की भीड़ बढ़ा रहे, और उसको कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं. हम जिम्मेदार है. ये तादाद मेरे को कम करने की बहुत सख्त जरूरत है, और उसी के लिए नैक है, उसी लिए NBA, उसी लिए हम क्वालिटी बेंचमार्क की टॉपिक कर रहे हैं, उसी लिए हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, उसी लिए हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं, उसी लिए हम करिकुलम एनरिचमेंट करके बच्चों को यूटिलिटी उनकी बढ़ाना चाह रहे हैं. We want to enhance the utility of a student. He should be in a position with respect to his knowledge, skills, and competencies to work into certain organizations, certain industry, certain sectors. वहां वो यूज ही होना चाहिए. ऐसा बना के भेजना ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरे लिए कंपल्शन है. एक शिक्षक के होने के नाते मुझे ये चाहिए कि मेरा हर बच्चा एम्प्लॉयबल रहे. मेरा हर बच्चा एम्प्लॉयबल रहे. उसमें से कुछ लोग बिजनेस करेंगे, पर बच्चे को नौकरी नहीं लग रही तो बिना नौकरी का वो बाद में भीड़ का हिस्सा बन जाए, वो मुझे नहीं चाहिए. थिंक ऑन दिस लाइन, पॉन्डर ऑन दिस लाइन कि मैं क्या करा रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं. तो हमको टारगेट रखना चाहिए 4 में से कम 3 नंबर आ जाए, मुझे 75%. और 75% आ गए मतलब आप बच्चों को हम 75% मांग रहे हैं, राइट. सो इनको भी 75% मांग लिया तो हमको ए ग्रेड आ जाता है, विच इज अ रिस्पेक्टेबल ग्रेड. बाद में अगर आपकी तैयारी है तो आपको ए प्लस और ए डबल प्लस भी मिल ही सकते. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमको एटलीस्ट ए ग्रेड मिल रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए अभी क्या करना चाहिए, लेट अस सी. अब ये बेसिक पहले देख लेते हैं, अगर आपको थोड़ा रिवीजन नहीं होगा तो. एक एग्जीक्यूटिव समरी यू हैव टू सबमिट, प्रोफाइल फॉर यूनिवर्सिटी, एक्सटेंडेड प्रोफाइल, QIF क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क जिसमें हम लोग अपलोड कर रहे हैं ऑनलाइन, इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर अवेलेबल एंड डेटा टेम्पलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स. क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स जो भी अपलोड करना है, सबमिट करना है, दे आर डेटा टेम्पलेट्स आर अवेलेबल. यू हैव टू सबमिट द डेटा, द प्रूफ्स, everything into that given template only. एंड देन क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो QIF बोल रहे हैं हम लोग, वो QIF में हम लोग अपना डेटा डालते जाते, जब जी उसको काउंट करेंगे, रन करेंगे, तो यू विल गेट दैट प्रोसीजरल डिटेल्स. ये भी एक बार देख लेते, समझ लेते, क्योंकि इसमें भी लोग गड़बड़ कर जाते. तो इसमें कुछ नहीं है, सबमिट आपको सबसे पहले IIQA डालना है. वंस IIQA इज एक्सेप्टेड, यू गेट टाइम 45 days फॉर SSR. into those SSR, then you have a standard operating procedure. बहुत अच्छी बनाई है, ये रिसेंटली बनाई है SOP. SOP बनने से इतना आसान हो गया है नैक करना, अभी मतलब नैक समझना आसान हो गया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स.
रिसेंटली हुआ है ये 2-4 साल पहले, और वो एसओपी आने से क्या होता है, अभी रेफर एसओपी एंड यू विल फाइंड दैट ओके इसको ऐसा करना है, अच्छा इसमें नंबर ऐसा करना है, इसमें वैसा करना है, वैसा करना है, ये एक्सपेक्टेड है, सो एसओपी। देन एसएसआर कंप्राइजेस ऑफ बोथ क्वालिटी कितना है 30% एंड क्वांटिटेटिव 70%. So quantitative will be subjected to validation exercise with the help of data validation and verification. And जो क्वालिटी है वो पीयर टीम विजिट आएंगी तब होगा, जब विजिट एक्चुअली होती है, जब अपने नैक एक्सपर्ट्स अपने कॉलेज में आते तब वो 30% पे फोकस रखते, दैट इज क्वालिटी। एंड डीवीवी डेटा वेरिफिकेशन जो ऑटोमेटिक हो रहा है नैक में सबमिट होने के बाद, उसमें कितना परसेंटेज हो रहा है 70%। अगर मैंने 70 में 70 ला लिया तो मेरे को 75% ही तो चाहिए। 75% मिलने से मेरे को 3 नंबर आएंगे, 3 नंबर्स मीन्स आई एम ए ग्रेड। सो दैट इज द पॉइंट। देन ऑफ कोर्स प्री क्वालिफायर भी होता है, आपने ऐसा ऐसा सबमिट किया जिसमें आपको 25% नंबर भी नहीं आ रहे, तो यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट क्वालिफाइड, सो उसको बोलते प्री क्वालिफायर इन द फाइनल स्कोर आफ्टर डीवी प्रोसेस। डीवी प्रोसेस में वो पता लग जाता है कि आप तो क्वालिफाइड ही नहीं है, आप 25% में नहीं मिला सकते, हम तो वी आर टॉकिंग अबाउट 75% फॉर ए ग्रेड। If you are not able to score, fetch, make out 25%, then you are not eligible for NAC. And then peer team visits for only for that 30% of quality benchmarks which you have created. और ये सब कहां से समझता है, इसके साथ साथ ही जब हम अपलोड करते रहते हैं ना, जब हम एसएसआर और इसके अपलोड डीवीवी की राह देखते तभी स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे वो फॉर्मेट आपने देखा होगा, there are 20 objective questions and 1 subjective question and will be emailed to all students, 10% of the student population or 500 whichever is lesser. अब 10,000 बच्चे होंगे तब भी 500 को ही करेंगे, और अगर आपके पास 5,000 बच्चे हैं तब भी 500 को करेंगे या उससे कम करेंगे। तो पॉइंट इज SSS स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये कब आ रहा है, ये जब आप अपलोड कर दोगे, और जो भी आप अपलोड कर रहे हो बच्चों से वेरीफाई होने वाला है। If you say we have an amazing play area and we have great sports facilities and we have cricket pitch and swimming pool and we have indoor stadium and so on, immediately इसमें कुछ भी अगर गड़बड़ रही ये डेटा में, तो they will refer it, they will confirm it from parents, students and academics. It is very, very important. Just a second, I'll take a call. It's important. Yeah, hello. Sir, I'm calling you in 15 minutes. Session मध्ये. Yeah. Okay. Yeah. I'm expecting a very important call. Sorry for that I taken. So issue is student satisfaction. So student satisfaction is वो सर्वे तब आता है जो हम लोग क्वांटिटी में भर रहे, आम्ही 50 वर्कशॉप घेतले, बच्चों से नंबर ले लेंगे। वो कितनी वर्कशॉप के लिए थे तू? एक। जब कॉलेज में 50 वर्कशॉप हो जाते तो तूने एक कैसे किया? सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी रियली वांट टू फोकस अपॉन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कुछ लिया हूं, बट बेस्ट इज यू ऑल मस्ट गो थ्रू दी नैक मैनुअल पूरा कंप्लीट। उसमें कुछ भी गड़बड़ मत करना, नैक मैनुअल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने देखा ही होगा सबने, दिस इज द नैक वेबसाइट एंड दिस इज इट्स मैनुअल। ये मैनुअल जब तक हम अच्छी से नहीं पढ़ रहे ना, दिस इज इंस्टीट्यूशनल मैनुअल, प्लीज सी टू इट दैट यू चेक इट आउट। हेलो, यस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जब तक आपको इसको पूरा रट्टा ही मार लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि ऐसा क्राइटेरिया पाऊंड तक तो इवेल्युएशन शीट पा तो नहीं, बेसिक चैप्टर्स ये जो है ना पहला, ये पूरा ही पढ़ने लायक है, बहुत इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ
नैक नैक क्राइटेरिया बना लिए, पर क्यों बनाए? नैक ने क्वालिटी इंडिकेटर बनाए, पर क्यों बनाए? 70% क्वांटिटी में बनाए, क्यों बनाए? क्वालिटी में 30% रखा है, जो पीयर टीम विजिट कर रही, क्यों बना रहे, कैसे बना रहे, विजिट करते वक्त क्या करेंगे? देयर आर 100 क्वेश्चंस, देयर कैन बी 100 FAQs। देखो, फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसी अमंग स्टूडेंट, ये फोकस है उसका। अब इसके बारे में नैक का कौन से इसमें आ रहा है, पूछिए। कहीं नहीं दिखेगा हमको, नहीं दिख रहा, मतलब ये है नहीं, क्या है? इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स, दीज आर दी फोकस पॉइंट ऑफ नैक। अगर मैं ये नहीं समझ में आ रहा हूं और मैं वही फोकस शीट एक स्कोर लेके उसके पास मारामारी करते रहूंगा तो नहीं होता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये फिलोसॉफी, ये एक छोटा सा PDF रहता है, आप हर एक को पढ़ना जरूरी है। क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंसी, फिफ्थ पॉइंट इज क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस, contributing to the nation building and skill development of students through HEIs। इतनी बड़ी फोकस है यार ये, मतलब पीपल आर लाइक इमीडिएटली वी गेट इनटू दैट स्कोर शीट, की इंडिकेटर, या फाईल ती फाईल, या फाईलमध्ये ते आणायचं, त्या फाईलमध्ये आणायचं, सगळं होणार, वो भी करना है, वो करेंगे, लेकिन यार फिलोसॉफी तो समझो। व्हाट इज सेल्फ स्टडी रिपोर्ट? Why, where, when, who derived it? What was the purpose of deriving it? What was the need of doing such thing? Is something which a NAC manual tells. There are 3 separate NAC manuals available for affiliated college, for universities, and for autonomous colleges. Please understand, the philosophy is quest for excellence. The philosophy is promoting use of technology. The philosophy is about inculcating value system. Philosophy is about fostering global competitiveness, creating global citizens, creating global employees from our institution is the very fundamental contributing to national development. I hope you can see the screen, right? You can read the screen, right? Hello? Yes, sir. Yes. Yeah, please, yes. Promoting use of technology, मैं ये PPT में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट इज ये वाले चीजों को हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाते। क्वेस्ट फॉर एक्सेलन्स तो पर्पज आहे यार, ये हमने कब बोला? नॅकच्या एका तरी मीटिंगमध्ये क्वेस्ट फॉर एक्सलन्सवर महत्वाचं बोलणं झालं का? किंवा नेशन बिल्डिंग बद्दल बोललो आहे का? किंवा यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी असेल जेवढा त्याच्यापेक्षा खूप 10 पट वाढवायचं, याच्यावर काही उपाययोजना नेमल्यात का? मीटिंगमध्ये आपण बोललो आहेत का? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्हनेस मध्ये मुलांना उतरवायचं, यासाठी आपण कधी सेपरेट मीटिंग्स घेतल्या आहेत का? आणि त्याचा आउटकम काय है? देखो, ये फोकस पॉइंट है ना उनका, अगर इसको हम नहीं दे पाएंगे तो नहीं चलता। सो इम्पॉर्टंट इज दीज आर प्रोसिजरल पॉईंट। हे मी त्यातलं काही विशिष्ट काही स्किल आपला दीड तासाच्या याच्यात आपण घेतोय, पण मुद्दा हा है कि आपने पूरा पढ़ना चाहिए। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आउटकम क्या? आई विल मेक इट फुल स्क्रीन। पार्ट 1 क्या है? पीयर टीम। फाइनल असेसमेंट कैसा होता है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ये तो अपने सबका कर लेना चाहिए। स्वॉट, हम लोग स्वॉट बोलते थे पहले, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नाउ दे टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। सो प्लीज सी टू इट दैट आपने अपना खुद का भी स्वॉट कर लेना चाहिए। मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, और मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या मिलने वाली मेरे को, और मेरे को चैलेंजेस क्या है, मेरे को थ्रेट्स क्या है, मैं अपडेटेड नहीं हूं, मेरे को कोडिंग नहीं आता, मेरे को सॉफ्टवेयर नहीं आता, मला ते अमुक येत नाही, मला इंग्लिशवर कमांड नाही, मेरी वीकनेस ढूंढ लो। And every teacher, I'll request that please see to it that you do your own SWOT, not only of yourself, your faculty, your department, and then your college। एक बार अगर ये मैं मेरा स्वॉक कर लूँ ना, मैं हमेशा करते रहता हूँ, मैं टीचर्स का भी कराता हूँ, मैं तो स्वॉक और वर्कशॉप देता हूँ सेपरेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पे मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ सेपरेट इंडस्ट्री के लोगों के लिए, क्योंकि वो जब तक आइडेंटिफाई, मेरे को जब गैप ही नहीं मालूम तो मैं क्या फायदा? मला इथे जायचं आहे पण मी इथेच आहे। अब ये गैप तभी ढूंढ सकते हैं जब मेरी स्ट्रेंथ, मेरी अचीवमेंट्स, मेरी अपॉर्चुनिटीज को मैं टैप नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मेरी गैप है। देखो, एक कंप्लीट एजुकेशन का लैंडस्केप वो इतना ज्यादा हिल रहा है, इतना ज्यादा डायनामिक है, इतना ज्यादा इंप्रूव होते जा रहा है कि वो यहां से यहां चले गए, हम यहीं रह गए। दी वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। 25 साल में जो होता था वो आज 25 दिन में हो रहा है। द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, द ग्रोथ ऑफ कोडिंग, द ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम्स, द ग्रोथ ऑफ एप्स, the comfort of softwares,
दे वेयर यूज, जो 25 साल 30 साल में जो चीजें होती थी वो आज 10 और 5 दिन में हो रही है। अगर ये 10 और 5 दिन में हो रही तो क्या मैं कोप अप हो रहा हूँ क्या? तो फिर मेरे लिए चॅलेंज आहे की मैं अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे लिए थ्रेट है। थ्रेट वर्ड मला खूप आवडतो, थ्रेट है मला कि मैं टिक ही नहीं पा रहा हूँ यार। बच्चे हंसेंगे मेरे को मेरे क्लास में, मैं यूजलेस हो जाऊंगा। अगर कल को कॉलेज मेरा अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने खरीद लिया तो मेरे को पहले भगा देंगे। आई एम नॉट टॉकिंग बैड, बट द पॉइंट आई वांट टू पुट अक्रॉस इज, मैंने मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस है तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 में तो जनरल इंफॉर्मेशन देना है, वो बहुत आसान है। सेक्शन 2 क्या, कॉलेज एड्रेस जो भी है वो सब। सेक्शन 2 में क्या रहता है? क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट रिपोर्ट देता है ईयर टीम। बहुत वो आपको दिखाते भी है बिफोर एग्जिट मीटिंग। यू सी, यू चेक, यू कैन सजेस्ट। दैट इज द सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 इज overall analysis, that is strength, weakness, opportunities and challenges, and section 4 is quality enhancement, recommendations for quality enhancement। आप जो भी क्वालिटी पे आपको बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, so there will be quality improvement scope which will be given in part, section 3। and now part 2 is graphical representation on QN and quantitative metrics। It's a system generated quality profile of HEI, you all know it's a system generated। इतके मॅन्युअली 10,000 पानं आपण जोडतो त्याच्यावर, हे आपण पाहू शकत नाही। सो डीवीवी होता है, डीवीवी उसको फिक्स पैरामीटर और स्केलिंग का एक क्राइटेरिया है, उसमें वो फिट करके उसको अकॉर्डिंगली दे डू दैट। सो ग्राफिकल अँड देन इन्स्टिट्यूशनल ग्रेड शीट। फायनली आपली ग्रेड शीट येते, मग आपल्याला मिळतं शेवटी 3.01, 2.97, 2.58 काहीतरी, जो भी आपका 4 में से जो स्कोर रहेगा, जो आपको डीवीवी में काफी कुछ आइडिया आ ही जाती है, क्योंकि 70% ने अगर आपने 2.5 लाया है तो आपको 3.5 जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 30% पे कितना भी नंबर मिल जाएंगे फिजिकल पीयर रिव्यू विजिट में, यू विल नॉट बी एबल टू रीच टू 3.5। so about these parts will together form the NAAC accreditation outcome document, and which is of course uploaded there, we all know। कैलकुलेशन ऑफ CGPA, यस, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड वो सब अपने को मालूम ही है, 0.4 स्केल में जाना पड़ता है। नाउ कुछ चीजों को तो इमीडिएट शुरू कर देना चाहिए। विजन, मिशन, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे इमीडिएट काम करना शुरू कर देना चाहिए। वो कितना भी अच्छा बनाओ उसको रिवाइज करिए। फिर इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, स्वॉक पे काम करिए। जब तक आपको स्वॉक नहीं करोगे ढंग से, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का डिफरन्स ही नहीं समझ में आ रहा है, तर त्याच्यात ग्रोथ, त्याच्यात इम्प्रूव्हमेंटला स्कोपच नाही राहणार। देन फिजिकल ॲम्बियन्स, साइनेजेस पे नॅक बहुत इंपॉर्टन्स देता है। इव्हेंट झाला, त्याचे फोटो लावले, फ्लेक्स बनवून टाका। वे टू लायब्ररी, वे टू क्लासरूम्स, डिपार्टमेंट ऑफ धमक ऑफिस, अकाउंट डिपार्टमेंट, कॅश काउंटर, साइनेजेस, नेम प्लेट सगळीकडे भरपूर लावा। नॅक बहुत अच्छी से उसको देखता है। लेआउट, इन दिस बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोअर, फर्स्ट फ्लोअरवर कोणते लॅब आहे, सेकंड फ्लोअरवर कोणता डिपार्टमेंट आहे, थर्डवर काय आहे। सो फ्लोअर लेआउट्स, बिल्डिंग लेआउट्स, त्याच्यानंतर त्यांची नावं, त्या बिल्डिंगची नावं, ऑडिटोरियम्सला वगैरे काही वेगवेगळे नावं, CV रमण नाव दिलेलं आहे, अल्बर्ट आइन्स्टाइन हॉल दिला है, खूप छान वाटतं त्यांना, तसं सगळं करा। सो फिजिकल एम्बियंस पे बहुत अच्छे से काम कर लेना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। महागडा पेंट नहीं लावायचा है, कॉन्सेप्ट अपने को बहुत अच्छी लानी है। देन डॉक्युमेंटेशन विथ प्रूफ। किती सुंदर तुम्ही इव्हेंट केला असेल, पण तुमच्याकडे त्याचा फोटो नाही, तुमच्याकडे त्याचं इन्व्हिटेशन नाही, तुमच्याकडे ते सर्टिफिकेट दिले ते तुम्ही हरवून टाकले ना, तुम्हाला ओळखत नाही। डीवीवी तर मुळीच ओळखत नाही, तो कॉलेजलाही ओळखत नाही। वो सिर्फ देखता है कि इसने 12 लिखा है तो 12 सर्टिफिकेट है। You have said you have done 25 programs. So do you have 25 brochures, 25 list of students who attended, 25 signature of the students, 20 format of certificate, and some 5 photographs of student, teacher, chief guest, dais, banner लावलाय का, त्याच्यात IQAC लिहिलेलं आहे का? You know, all these things are very important. So documentation with proof can only fetch marks in NAAC, कारण जोपर्यंत कमिटी येते तोपर्यंत तुमचं 70% असेसमेंट होऊन गेलेलं असतं. सो दॅट कॅनॉट वर्क. अँड दॅन इट इज स्टुडंट सर्वे. देन मीटिंग विथ ऑल स्टेक होल्डर्स, कीप कॉलिंग मीटिंग्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, युअर इंडस्ट्री पीपल, तुमच्या LMC मध्ये असतील, तुमच्या SPDC मध्ये, तुमच्या जिथे जिथे असतील, ज्या ज्या कमिटीज आहेत,
सिलेबस फ्रेमिंग असतील, इथे तिथे इंडस्ट्री पीपल, पॅरेंट्स मीट, स्टुडंट मीट, जेवढ्या स्टेक होल्डरच्या मीटिंग आहेत त्याची मिनिट्स झाले पाहिजे, त्याचे अटेंडन्स रेकॉर्ड असले पाहिजे, त्या अटेंडन्स रेकॉर्डवर त्यांच्या सह्या असल्या पाहिजे, त्याचा अजेंडा, त्याची मिनिट्स आणि त्याची ॲक्शन टेकन रिपोर्ट सगळ्यात महत्त्वाचं. पहिले मीटिंग नोटीस, देन अटेंडन्स, की कोण कोण आले, फोटोग्राफ वगैरे असला तर अजून चांगलं, देन पॉईंट्स टू बी पॉईंट डिस्कस इन दी मीटिंग, मिनिट्स ऑफ द मीटिंग, आणि त्या मिनिट्समध्ये जे नवीन ठरवलं त्याचा ॲक्शन टेकन रिपोर्ट. 6 गोष्टी प्रत्येक मीटिंगच्या मागे असल्या तो तुम्हाला एकदम स्मूथ चले जाएगा. फिर आता है, मैंने पहले से बोल रहा हूँ, बेस्ट प्रॅक्टिसेस अँड डिस्टिंक्टिव्हनेस. आपले काय बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहे आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतील आणि बदलताही येतात प्रत्येक वेळा. NAC peer team is interested in knowing the cultural program. एक इट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द peer team visit. तो पण तुम्ही आत्तापासून पहले से ही अच्छे से बना के रखो तो तुमको उसका एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है. आता प्रत्येक क्रायटेरिया वाईज जर जायचं ठरवलं आपण, प्रत्येक क्रायटेरिया वाईज, तर एक सॅम्पल क्रायटेरिया घेतला मी, रिसर्च इनोव्हेशन, बिकॉज दिस इज द क्रायटेरिया विच इज द मोस्ट विन विन क्रायटेरिया. मी याला काय म्हणतो, विन विन क्रायटेरिया. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको काम करना है, मॅनेजमेंटचं काम नाही, मुलांचं काम नाही, HODचं काम नाही, इंफ्रास्ट्रक्चरचं काम नहीं, फक्त तुम्हाला रिसर्च करायचा है. क्योंकि उसमें से तुमको डिग्री मिलने वाली है, तुमको स्टूडेंट मिलने वाले PhD, तुमको रिसर्च पेपर मिलने वाले, तुमको पेटेंट मिलने, तुमको मिलने वाला है. PhD डिग्री तुम्हाला मिळणार, डिग्री मिळाल्यावर तुम्ही लोकांना गाईड कराल, त्याचं क्रेडिट तुम्हाला मिळणार, त्या मुलां थ्रू तुमचा रिसर्च थ्रू तुमचे रिसर्च पेपर होणार, तो तुमचं क्रेडिट, पेटेंट होणार तुमचं क्रेडिट. एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ रिसर्च ॲक्टिव्हिटी, एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी, इनोव्हेशन, anything happening into this criteria is your personal achievement. आगे पीछे आपको जॉइंट डायरेक्टर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको प्रिंसिपल बनना है, आपको प्रमोशन पे किस गवर्नमेंट बॉडीज पे जाना है, आपको डायरेक्टर टेक्निशियन के ऑफिस में जॉईन करना आहे, आपको असिस्टंट डायरेक्टर, असिस्टंट सेक्रेटरी, जॉईंट डायरेक्टर, आपलं काय काय बनायचं आयुष्यात, जर ते सगळं असेल, सगळे डेप्युटेशनवर पोस्ट आहे आजकाल, बिंदास यू कैन अप्लाई एंड गो फॉर 3 years and 5 years, बट उसके लिए आपको प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग लगता है, और वो जो स्ट्रांग प्रोफाइल लगता वो रिसर्च से ही बनता है. रिसर्च एंड अलाइड, ऑफ कोर्स, आई मीन नॉट रिसर्च मीन्स कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट, स्कीम, फंडिंग एजेंसी से पैसे लाना, ये सारा. तो ये सबसे पहले तो इससे मत चुराना. रिसर्च तो आमच्याकडे पुअर आहे. अरे कैसे पुअर रह सकता, लोक पुअर आहे क्या? लोक PhD आहे, UGC सिलेक्टेड आहेत, इंटरव्यू थ्रू पास होऊन आले, तर त्यांना काही तर दम असेल ना, तो उनको बस करवाइए ये काम. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज विन विन क्राइटेरिया. देखो, तुमने कॉलेज की कोई कैटरिंग कमेटी में काम किया तो तुमको पर्सनलाइज एक सर्टिफिकेट मिल कि यू हैव वर्कड इन कैटरिंग कमेटी, बट आपका पर्सनल वो नहीं है अचीवमेंट. पर आपने एक रिसर्च पेपर किया, आपकी अचीवमेंट है, डिपार्टमेंट को फायदा हो रहा है, नंबर ऑफ पेपर लिखने में कॉलेज को भी फायदा हो रहा है, और अपने को R&D में नंबर भी मिल रहे हैं. तर तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे. तो अगर हमने वो सोच लिया ना कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल एनहांस करना है, बस मेरे को कॉलेज से कोई लेना देना नहीं, तब भी आप क्राइटेरिया 3 में कॉलेज को लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसको हर चीज पे मार्क है. यू आर पब्लिशिंग अ पेपर, getting grants from government agency, getting grants from NGOs, collaborating with network, collaborating with foreign universities, collaboration, getting grants from non-government organization, AICT, DT, UGC, DST, ग्रांट्स ला रहे हो, PhD कर रहे हो, PhD का पेपर पब्लिश कर रहे हो, पेपर के बाद आपके स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट की डिग्री हो रही है, कंटिन्यूअस आपकी पर्सनल ग्रोथ है. त्यामुळे या क्रायटेरियाला तर बिलकुल यू गेट ट्रिमेंडस monetary benefits, name, fame, opportunity to visit foreign universities, chance to innovate, create, discover and invent. तुमच्या हातून काहीतरी चांगलं काम होणार आहे. Reputation in the field, immense satisfaction, and chance to oblige for many of their career. अरे लोकांना PhD करून देत आहे, त्याचा असोसिएट प्रोफेसर होता है, प्रिंसिपल बनतो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थर्ड क्राइटेरिया मेरे को तो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल और सबसे काम का है. अब उसके की इंडिकेटर्स हमने देखे ऑलरेडी. प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसर्च, इनोवेशन इकोसिस्टम, कंसल्टेंसी, एक्सटेंशन एक्टिविटीज एंड कोलैबोरेशन. और मैं पहले बोला था 3.6 एंड 3.7, जितना कोलैबोरेट करो, जितना नेटवर्क करो, जितने एक्सटेंशन एक्टिविटीज करो,
उतना आपके ऊपर के 5 पॉइंट में आपको नंबर मिलने वाले हैं. सो फोकस पॉइंट फॉर रिसर्च आर 3.6 एंड 3.7. 3.6 में आप किसी इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट कर लिए, आपका साथ में रिसर्च हो जाएगा, साथ में पेपर पब्लिश हो जाएंगे, कुछ अपन कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट स्कीम साथ में डाल सकते, 2-3 इंस्टीट्यूशंस टुगेदर और 1 इंस्टीट्यूशन एंड 1 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. Collaboration is the mantra for fetching almost around 300 to 400 marks. इन क्राइटेरिया 3 की नहीं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 300 से 400 मार्क्स आप कोलैबोरेशन नेटवर्किंग से ला सकते हो, क्योंकि उसके वो अलाइड बेनिफिट्स हैं. Please see to it. So these are the 7 key indicators under criteria 3, and they are like this, but we have to work upon all of them. हे नसेल तर आपल्याला डिझाईन थिंकिंगवर काम करावं लागेल, जर लोकांना रिसर्चच करता येत नाही, प्रॉब्लेम स्टेटमेंटच सुचत नाही है. तो डिज़ाइन थिंकिंग नाम का एक वर्कशॉप है, कंडक्ट करिए, आपकी R&D भी स्ट्रेंथन हो जाएंगी, आपकी R&D फास्ट हो जाएगी, और एक R&D में वर्कशॉप भी हो जाएगा. प्लीज सी टू इट. Travel, meet new people, and cover entire band of society. It is very, very important. I had a last lecture on 2nd, and all these 3 things I did in last 10-12 days. मागचं लेक्चर मी 2 तारखेला घेतलं, और 2 की रात की फ्लाइट से I had a flight to Sharjah, and then I went to Sharjah, I stayed there, and from Sharjah I went to Bishkek. It is a Kyrgyzstan. It used to be the part of रशिया अर्लियर. USSR इतकं मोठं होतं, अमेरिका से बड़ा था, अब टूटते टूटते वहां से सब निकल गए. तो आई हैड अ chance to visit. I was invited as a keynote speaker for an international conference to represent India. So I represented India at Bishkek conference in Kyrgyzstan. ब्युटिफुल कंट्री आहे. किती लोक भेटले. मी तिथे जाऊन 3 कॉलेजला, मला खरं 2च कॉलेजला जायचं होतं. I went to 3 colleges. I went 1 university in Bishkek, that is the capital city. Then around 200 kilometers is the city Tokmok. So I had been to International University of Central Asia, that is Tokmok. And 3rd university I went for Isekul State University. So मेरे को 2 यूनिवर्सिटी जाना था, मैं 4 जाके आ गया. समय पे समय निकाला, 300 किलोमीटर दूर बाय रोड गया. But point I wanted to put across is travel, meet new people, cover entire band of society. माउंटेनियरिंग मध्ये काम होतं, त्यांच्यासोबत कोलॅबरेट केलं. बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट होतं, त्यांच्यासोबत कोलॅबरेट केलं, त्यांच्या लॅबोरेटरी व्हिजिट केल्या. बहुत मजा आया. 10 दिवस होतो तिथे मी. 10 days I spent on networking. इतना एनरिच होके हम लोग आए, मेरे साथ और मेरे 4 कलीग्स थे कॉलेज के. इट इज वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टंट है. तो ट्रॅव्हल, मीट न्यू पीपल. आता आमचं तिथे सगळं झालं पहा. हमारे लोगों ने, मेरे साथ जो लोग आए, हमने, आई गॉट माय पेपर पब्लिश्ड, read by one of the co-authors. So it was keynote address I did. I represented India there. It was meetings with different countries. We could talk to at least 14 countries, I tell you. 7 European universities सोबत माझ्या मीटिंग झाल्या तिथे, including Germany, France, American में 3 American universities, किर्गिस्तान की 4 कॉलेजेस. आखिरी दिन था मेरा ट्रैवल करने का, लास्ट डे था, रात को फ्लाइट थी. उस दिन भी मैं वहां पे एक मेडिकल कॉलेज जाके आ गया, रॉयल मेट्रोपॉलिटन, क्योंकि ये करना पड़ता है. मेडिकल कॉलेज ने मला काय करायचं, त्यांनी बोलवलं, सर आप डायरेक्टर है, हमारा आपका प्रोफाइल देखा है, आप हमारे बच्चों को एड्रेस करिए, हमारे कॉलेज में आइए, कुछ बताइए, विजिट करिए, सजेशंस करिए. आई स्पेंड 2-3 hours in that medical university. It's a university and owned by an Indian partner, दीपक शर्मा, यहाँ रोहतक के थे. सो उन्होंने कहीं से मेरा एड्रेस ले लिया, उनको पता चला कि मैं बिश्केक में हूँ, मैं किर्गिस्तान में रहने वाला हूँ 8-10 दिन. ही कॉल्ड मी, टुक मी, पिक मी अप, एक्सटेंडेड ऑल कर्टसीज, एंड आई वॉज एनरिच्ड. मेडिकल एज्युकेशन किर्गिस्तान, उझबेकिस्तान आणि कझाकिस्तानमध्ये कसं चाललं आहे, काय शिकवतात आहे. 10,000 इंडियन मुलं आहेत, 10,000 इंडियन मुलं आहेत, आणि 16,000 पाकिस्तानी मुलं आता सध्या आजच्या तारखेला तिथे शिकतात आहे. 10,000 स्टुडंट्स इन मेडिकल युनिव्हर्सिटी. इंटेक किती असतो आपल्या नागपूरचा, जीएमसीचा 100 वगैरे इंटेक आहे काहीतरी. वहाँ इंटेक कितना है, साल में 2 बार 300, जनवरी एंड सितंबर, 2 times they can take students admitted. And the 300 और 300 600 मुलांचा इंटेक आहे दरवर्षी. असं एका कॉलेज, असे 15-20 कॉलेज नुसत्या किर्गिस्तानमध्ये. हजारों बच्चे, अपने इंडियन बच्चे वहां पढ़ रहे.
उनका सब समझ लिया, उनकी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट समझा, उनको MCI इंडिया में आने का MCI एग्जिट एग्जाम होती है उसके फॉर्मेट्स क्या है, बहुत अमेजिंग एकेडमिक डिस्कशन हुए उनके ओनर के साथ। एंड इट्स सो गुड दैट बोथ दी ओनर्स, एक पाकिस्तान का है पार्टनर फरमान मलिक, दीपक शर्मा, दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती हुई। और दोनों देखो, एक 50-50 पार्टनर है, एक पाकिस्तान का है एक इंडिया का है, और दोनों MD है, दोनों डॉक्टर, एक MS है एक MD है। कॉलेज का ओनर भी MD MS रहने से विजन में फरक पडता आहे. दोघं ओनर डॉक्टर आहे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, आणि 90% मुलं इंडिया आणि पाकिस्तानचे आहे. किर्गिस्तानचे स्वतःचे 10% आहे तिथे. सो दॅट इज द केस. सो नेटवर्क कोलॅबरेशनही झालं, रिसर्च पेपर पब्लिश झाले. ते रिसर्च पेपर ऐकून तिथल्या लोकांनी म्हटलं की आमचे जे लोकल फॅकल्टी आहे त्यांच्यासाठी गेस्ट लेक्चर घ्या. आमच्या 2 फॅकल्टी मेंबर्सनी तिथल्या लोकल फॅकल्टीसाठी गेस्ट लेक्चर्स घेतले. 10 टाईपचे सर्टिफिकेट मिळाले गेल्या 10 दिवसात. एक ट्रेनिंगही अटेंड करून घेतलं मी, 1-2 एक जवळपास 6 तासाचं. इतना कुछ कर सकते इफ यू ट्रैवल, इफ यू मीट न्यू पीपल एंड इफ यू कवर एंटायर बैंड ऑफ सोसाइटी. मी इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंटला गेलो, मी कुठेही गेलो, उसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था. मेरे को सीखना था, वो मेरा पर्पज सर हो गया. एंड दैट इज द पॉइंट. So see to it that if you can work, if you can travel, if you can meet new people, if you can dissolve the boundaries, amazing opportunities. NAC सारखा सहज 3.6 पे आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको हर क्राइटेरिया में एनरिच कर रहे हैं. एंड ऑल दीज क्राइटेरिया गेट एनरिच, यू आर बाउंड टू. सो ये मैंने शायद लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस दिस थिंग, टीचर अपडेशन. अब क्या हो जाता है ना, सब जगह दुनिया फास्ट चल रही है. The entire ecosystem, the learning management system, the teaching learning process ecosystem, the entire education landscape has been changed, shaken up and getting updated so fast. सो वहां पे गैप्स रह रही है, इतकं बदलता है पट 10 महिन्यात 6 महिन्यात बदलता है. आणि तो बदलाव के कारण वो एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग में, स्टूडेंट टीचर में गैप्स क्रिएट हो रही. वो गैप पे काम करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है एक शिक्षक होने के नाते. सो टीचर को मेरे को अपडेट करना बहुत जरूरी. ही पाही गॅप इथे आहे, ही इंडस्ट्री गॅप आली, ही शिकवण्यात आणि शिकण्यात गॅप आहे. शिकवण्यात आणि शिकण्यात गॅप है. ऑनलाइन ऑफलाइन का यूज करने में गैप आ रही है. ये गैप्स को मेरे को भरना पड़ेगा, इसलिए टीचर को अपडेशन करना बहुत जरूरी है. ये जो आप कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फैकल्टी इंडक्शन, कंटिन्यूअस टीचर्स ट्रेनिंग होने चाहिए, उसके बिना कोई फायदा नहीं. टीचिंग में इनोवेशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस फैकल्टी को ट्रेनिंग होना चाहिए, न्यू टेक्निक्स यूज करना चाहिए, एंड स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच हैज टू बी द बैकबोन ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दीज डेज. बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, अगर आपने कुछ भी पढ़ाया ना तो नहीं सुनने वाले. अगर आपने किताबों से वही ट्रेडिशनल स्टोरी दिया तो बोलेंगे सर यूट्यूब मध्ये खूप चांगला आहे, तुम्ही शिकून घ्या तिथून. ऐसा कुछ हो जाएगा. प्लीज सी टू इट दैट यू गेट अपडेटेड कंटिन्युअसली. आता काय होत आहे, क्रायटेरिया 1, क्रायटेरिया 2, 6.3 ह्याच्यामध्ये आपण शिकवतो कसं आहे, क्वालिटी एनहान्समेंट, व्हॉट वी टीच, सिलेबस, हाऊ वी टीच इज ऑन द स्क्रीन. या 7 गोष्टींवर लक्ष ठेवा. मेथड काय वापरताय, मीडिया काय वापरताय, कोणते बुक्स रिकमेंड करणार आहे. प्रत्येक वर्गात एकतरी पुस्तक रिकमेंड केलं पाहिजे प्रत्येक शिक्षकांनी. प्रोग्राम आउटकम, त्याचा आउटकम काय होणार आहे, हाऊ यू आर एन्श्युरिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अँड ऑनलाईन इंटरव्हेन्शन्स कंपल्सरी आहे. या 7 गोष्टींवर तुम्ही लक्ष दिलं तो तुम्हाला कम से कम क्राइटेरिया 1 और 2 में तो बहुत अच्छे नंबर आने वाले, पर आणि 6.3 मध्ये पण मिळेल. फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज. सो फैकल्टी ट्रेनिंग देते वक्त आपको टीचिंग टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ाना है. सो ये 7 मुद्दों पे उनको कवर करिए. प्रत्येक लेक्चर, एवरी टॉपिक कोड आई एम राइटिंग, एवरी टॉपिक कोड शुड हैव दीज 7 थिंग्स ऑलरेडी प्लान. सिलेबस आणि ते कोणता टॉपिक कोड क्या पढ़ाना है, सब्जेक्ट, डेरिवेशन घ्यायचं आहे, न्यूमरिकल घ्यायचं आहे, ते वेगळं. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण 7 मुद्दे जर लक्षात ठेवले की आज मेथड काय, मीडिया काय, बुक्स कोणते रिकमेंड करणार, आउटकम काय होणार आहे, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कसं इन्श्योर करणार आहे, 2 मुलांना बोर्डावर बोलवणार आहे आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला लावणार आहे, 2 मुलांना मागच्या वर्षात काय शिकवलं त्याचं प्रेझेंटेशन द्यायला लावणार आहे. स्टूडेंट पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर कर रहे हो आप, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कैसे हो रहा है, कसे मध्ये मध्ये प्रश्न विचारतात आहे, कसं त्यांना डायसवर बोलवतात आहे, कसं त्यांची ग्रुप ऍक्टिव्हिटी घेतात आहे आणि त्यांना कळवू देतात आहे की अरे हा तुम्हाला समजलंय की नाही. अँड ऑनलाईन इंटरव्हेन्शन्स, प्रत्येक क्लास 1-2 क्लास नंतर कोणतरी झूमवर यावं तुमच्या क्लासमध्ये. कोई साइंटिस्ट को बुला लिया, कोई इंडस्ट्री पर्सन को बुला लिया, उसने वहां पे एक 10 मिनिटं येऊन बोलले, तुमच्या क्लासरूम मध्ये कोणी येऊन बोलले. ऑनलाईन इंटरव्हेन्शन, नाउ वी हॅव ऍक्सेप्टेड अँड वी आर कम्फर्टेबल विथ ऑनलाईन.
प्लीज डोंट लिव्ह ऑनलाईन. ऑफलाईन खूप मजा येते, ऑफलाईन सगळं सुरू आहे, पण ऑनलाईनचे खूप फायदे आहे. अमेरिकेतला प्रोफेसर तुमच्या हिंगणघाटच्या कॉलेजला येऊ नाही शकत, पण झूमवर येऊ शकतो ना. आणि ते एक्सपोजर मुलांना चमत्कारिक आहे. नॅशनल फिजिकल लॅबॉरेटरी, नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरी, इंटर युनिव्हर्सिटी कॉन्सोर्टियम, भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस्रो, DRDO, आपले कोणी ना कोणी नातलग मित्र, जुने मित्र, ॲल्युमनी आपले आहेत तिथे. उनको अगर वो आधा घंटा मेरे क्लास में बोल दे तो क्या नॉलेज मिलता है बच्चों को. केवढं एनलाइटनमेंट होईल. तर मग हे फक्त झूमनीच होऊ शकतं ना. आप दिल्ली से कोई इसरो के सीनियर सायंटिस्ट को कॉलेज बुलाओगे क्या? आणि ते मुलांचा क्लास घ्यायला लावाल का? पण तो आपल्या डिपार्टमेंट ऑफिसमध्ये बसून 15 मिनिटं मुलांशी बोलायला तयार आहे. मी अनेक अशा मोठ्या-मोठ्या सायंटिस्ट, ऑफिसर, आणि ती इंडियात नाही, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. तुमचा एखादा नातू, तुमचा एखादा पुतण्याचा आहे, Googleमध्ये अमेरिकेत आहे. अरे उसको बोलो, "अरे माझ्या मुलांशी बोलशील का थोडंसं तू? आपले अनुभव सांग, आपले अपॉर्च्युनिटीज, थ्रेट्स, चॅनल कसा है, तू कसा पोहोचला सांग." ये Zoom के बिना थोडी होने वाला है. अमेरिका से आपका भांजा आएगा कब और आपके वो छोट्या आपल्या गावात येईल कधी, त्या फर्स्ट इयरच्या मुलांशी बोलेल कधी? Zoomवर तो 15 मिनिटात कॉलेजचं ऑफिसचं काम करता-करता अमेरिकेतून तुमच्या 15 मिनिटात तुमच्या मुलांशी बोलून घेईल. इसको मैं समझता हूँ ऑनलाइन इंटरवेंशन. प्लीज ट्राय ऑल दिस टू सी टू इम्पॅक्ट ऑफ क्रायटेरिया 1, 2 and 6.3. अनेक कोर्सेस आम्ही पण डेव्हलप केलेले आहेत. मी आतापर्यंत आय थिंक आय हॅव डिस्कस दिस थिंग इन लास्ट 6,000 प्लस फॅकल्टी मेंबर्सला ट्रेन केलेला आहे. 10,000 फॉर टीचिंग मेथडॉलॉजी, सोशल एंटरप्रिनरशिपवर 2,000 टीचर्सला ट्रेनिंग दिलं आहे. 1,000 प्लसला फेक न्यूज, ग्रीनचे आता प्रचंड कोर्सेस सुरू केले आहेत. 6 कोर्सेस संपले, 350 मुलं त्याच्यात ट्रेन झाले आहेत. हे सगळं बियॉन्ड सिलेबस आहे. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. स्टुडंट सेंट्रिक सिस्टम आणि आउटकम बेस्ड अप्रोच ठेवला तर तुम्हाला ऑटोमॅटिक स्कोर्स इन मेनी क्रायटेरिया मिळतात. प्लस रेप्युटेशन, प्लस ब्रँड, प्लस ट्रू आउटकम, प्लस इनोव्हेटर्स क्रिएट होतील, प्लस स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन. स्टुडंट सेंट्रिक सिस्टम आणि आउटकम बेस्ड अप्रोच हे क्रस्ट आहे पुढे नॅक का. मुलांना काय फायदा होणार, मुलांना काय मजा येणार, मुलं प्लेसेबल होणार, मुलं एम्प्लॉयबल होणार, मुलांना वर्ल्ड क्लास PG स्कूल्समध्ये ॲडमिशन मिळणार, स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन रेशिओ भरपूर येणार. ये अगर फोकस रख के पूर्ण 7 क्रायटेरियाला जर तुम्ही एकदा ट्रीट कराल, तर आय एम शुअर दॅट यू विल गेट दॅट. साधं स्टुडंटला काही चेंज करायचं ना, स्टुडंटसाठी पाहा तुम्ही. मी सहज क्रायटेरिया पण लिहिले. काय करू शकतो मुलांसाठी आपण? त्यांच्यासाठी क्लब्स क्रिएट करा. ग्रीन क्लब, सोशल मीडिया क्लब, IAS अँड IPS ऑफिसर्स क्लब, रोटरी, JCs, लॉयन्स यांचे क्लब घ्या. NSS खूप महत्त्वाचं आहे. भरपूर रॅम्पंट मुलं करा. युनिव्हर्सिटीने 200 मुलं दिले म्हणून काय झालं, तुमच्याकडे 400 मुलं NSSला काम करू द्या. मेंटर मेंटी सिस्टम सुरू करा. ॲल्युमनी ॲज अ मेंटर, स्पॉन्सर्स अँड व्हिजिटिंग फॅकल्टी. ॲल्युमनीला 20 मार्क आहे तरी, पण ॲल्युमनी जिथे-तिथे पर्क्युलेट व्हायला पाहिजे. नॉलेज सेंटर, इनोव्हेशन सेल, बियॉन्ड क्लासरूम, एन्करेज ऑनलाईन लर्निंग. कंपल्सरी करा. दर 6 महिन्यात एक तरी ऑनलाईन कोर्स केला पाहिजे. Udemyवर 300-400 रुपयात मिळतोय. करेंगे बच्चे. डिस्काउंट चलते. कोर्सेरामध्ये 10,000चा कोर्स 90% डिस्काउंटवर 1,000 रुपयात मिळतोय. सीजन रहता डिस्काउंट का. कराइए, टीचर को भी कराइए, स्टूडेंट को भी कराइए. वो रिफ्लेक्ट देखो फिर कैसा नॅक में आता है. तर मी नुसतं स्टुडंटवर म्हटलं तर 1.2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 5.1, 5.3, 5.4 एवढ्या क्रायटेरियामध्ये मार्क मिळू शकतात फक्त हे खालचे ब्लूवाले कामं जर आम्ही केले तर. पण त्या क्रायटेरियात काय करत बसायचा ह्याचा विचार करत बसलो, तर काहीतरी डॉक्युमेंट जमा करत राहायचे आणि पुन्हा पूर्णपैकी पूर्ण मिळणारच नाही. त्याच्याशी करायचं काय, हे निळंवालं करायचं आहे, हे येल्लोवाले आपोआप मिळून जाणार आहे. हे मेरा पॉइंट आहे. क्रायटेरिया 7 मध्ये नेहमी आउट ऑफ बॉक्स सोल्युशनसाठी एखादी जागा क्रिएट करा. जसं आम्ही नॉलेज सेंटर केलेलं आहे, तसं काही पण करा. इनोव्हेशन सेल नाव द्या, डिझाइन स्टुडिओ द्या. तिथे तुम्हाला क्रायटेरिया 7 मिळणार. तिथे काहीतरी नवीन होणार, तिथे इनोव्हेशन होणार, तिथे डिस्टिंक्टिव्ह प्रॅक्टिसेस क्रिएट होणार, तिथे मुलं एकमेकांना शिकवणार. वहां से आपको क्राइटेरिया 7 की अमेजिंग आइडियाज आने वाली. तो डियर टीचर्स, there are 7 criterias. There are some expectation of NAC. There is 70% which is already getting done with respect to your proofs you have attached to NAC into your SSR. क्वालिटी फ्रेमवर्क आपल्याला माहित आहे. आपल्याला QN मॅट्रिक्स आणि QL मॅट्रिक्स आम्हाला माहित आहे. हे सगळं माहित असताना मेरे को क्या करना है? मेरे को क्वालिटी मेरे कॉलेज की इंप्रूव करना है. NAC नहीं भी मिला तो चलेगा. कमिटी पुढच्या वर्षी बोलवणं जाऊ द्या. ये फोकस अगर चेंज करके हम काम कर रहे हैं तो हमको जरूर NAC A+ के A++ मिल जाएगी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थोड़ा खांसी हुआ है इसलिए मैडम तो मेरे को सेकंड लेक्चर लेने बोल रही थी, पर मेरे को तकलीफ हो रही थी. थैंक यू सो मच. आई एम अवेलेबल ऑन ऑल माय सोशल मीडिया. लास्ट टाइम मैंने बताया था, यूट्यूब,
Thank you, Twitter, sir. Instagram, LinkedIn, Facebook, Thank you, and sir. my mobile number is WhatsApp number is Thank you, sir. 9832333286. So thank you so much, all of you. I'm open for questions. Thank you, sir. Thank you so much. थँक्यू सो मच सर. कोणाला काही विचारायचे आहे क्वेश्चन्स? Or you wish to discuss any point or any criteria? No questions? Yeah. Fine. I am otherwise also reachable. So आप Yes. मेरे से कभी भी बात कर सकते हो on WhatsApp, on email. I'm like full time. I am interested in collaborations. किसी कोई बात करनी है, मिलना है, normal कुछ बात करनी है, तो I am always available. And please, I expect that आपके सबके grades enhance हो जाए. My best wishes to all of you. Change your focus from scores to quality. And then you will be achieving success like anything I tell you. आणि ते मनातून सॅटिस्फॅक्शन राहणार आहे. बात सॅटिस्फॅक्शन की रहती है. मला किती मार्क मिळाले आणि मला किती ग्रेड मिळाला, वो आप खुद ही कन्विंस नहीं है, तो वो ग्रेड का कोई फायदा नहीं. अगर आपको ग्रेड कम भी मिल रहा है पर आप अपने आप को A+ समझ रहे हो, फायदा ज्यादा है. आणि नॅकनी A+ देऊन टाकला आणि तुम्हाला स्वतःला आतून कॉम्प्लेक्स आहे की मी B वाला आहे, तो कुछ नहीं हो सकता. So please see to it that you enhance your quality. You do your own SWOT analysis and SWOT analysis, and then you will understand कि मग नैक झक मार के नैक को देना पड़ेगा यार, नहीं देके क्या करेंगे. So that is the case. My best wishes to all the participants and their institutions for a good NAC scores in the forthcoming years. Thank you so much. Thank you Thank you, so sir. much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Once again, Thank I you so extend much my for all thanks the to all the appreciations. Thank you so much. I was just going through chat. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. Please. Once again, I extend my heartfelt thanks to Dr. Vivek Nanoti, sir, for accepting our invitation in spite of his busy schedule and enlightening the participants on a very crucial topic of NAC assessment. Thank you so much, sir, once again. Thank you. Thank you. I'm leaving the meeting. Yeah. Yes, sir. Thank you. Thank you all the participants. Now you can proceed for your lunch break. We'll meet at 1:30. First we'll go with the seminars. आज 5 participants के जो सेमिनार है पहले वो कंप्लीट कर लेंगे. And please try to complete within a time of 10 minutes so that we can cover all the seminars and then we can proceed for our Moodle online course creation. तर तुम्ही ट्राय करा की 10 मिनिटात प्रत्येकाचे सेमिनार्स कंप्लीट व्हायला हवे. प्लीज एक्सटेंड नका करू टाइम. म्हणजे 1 तासामध्ये जर आपले सेमिनार झाले तर आपण पुढला 1 तास पुढच्या स्टेप्स बघू शकू त्या Moodle सॉफ्टवेअरच्या. ठीक आहे. तर जे पार्टिसिपंटचे सेमिनार आहे त्यांनी थोडं लवकर जॉईन करायचा प्रयत्न करा. मी 1:15 वाजता मीटिंग सुरू करील. ज्यांचे प्रेझेंटेशन्स आहे त्यांनी जर लवकर जॉईन केलं तर आपण 1:15 वाजता सेमिनार सुरू करूया. ठीक आहे. चला मी इथे मीटिंग एंड करते. वी विल मीट ॲट 1:15 फॉर अवर सेमिनार सेशन. थँक्यू. Thank you, ma'am.